Recording start.
Salam guys and welcome to the session. Someone to please confirm my voice is okay, आवाज ठीक है? So guys, let's start with the today's session, and today our target would be to cover two chapters. One related to routing and second one related to layer 2 switching in FortiGate. So let's start with the routing module first. और इस module के अंदर we'll be configuring the basic principles of routing, फिर routing monitors, कुछ route attributes, equal cost multipathing कैसे होती है FortiGate के अंदर. main focus हमारा इस पे रहेगा. We're talking about the interface types, aggregate interfaces क्या हैं, redundant interfaces क्या हैं, policy based routing क्या है, what is PBR in case of FortiGate. So this will be the content in case of FortiGate or routing module of FortiGate. Basic जो concept है routing का, that stays valid over here as well. कि आपका routing जो है उसमें आप forwarding करते हो by consulting the routing table using the best possible path. That is the main idea behind routing जो एक normal router पे होता है. तो वही चीज़ यहाँ पर भी supported है उसी तरह से. और normally जो आपकी firewall है it is in NAT mode. NAT mode is a routed mode, layer 3 mode, because अगर आप recall करो तो हमने अपनी firewall के different interfaces के ऊपर we assigned layer 3 IP addresses और उसकी basis के ऊपर हम connectivity verify कर रहे थे और policies define कर रहे थे. So the basic mode in which FortiGate operates is the NAT mode. आज हम देखेंगे कि दूसरा मोड इसका जो है ट्रांसपेरेंट मोड, उसमें ये कैसे काम करता है, व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन NAT मोड एंड ट्रांसपेरेंट मोड, बट दैट ट्रांसपेरेंट मोड वुड बी कवर्ड इन द लेयर 2 स्विचिंग चैप्टर. राउटिंग लुकअप होता है राउटिंग टेबल कंसल्ट करके, दैट इज वेरी बेसिक. उसमें कोई ऐसी खास चेंज नहीं है FortiGate के अंदर. आप जानते हो कि by using your basic knowledge of routing के दो तरह की routing basically है. One is static routing and other is dynamic routing. Static routing it is supported by all the routing hardwares और dynamic routing की भी जो है it is available. लेकिन dynamic routing में ये होता है कि कुछ routing protocols at times कुछ hardware पे supported नहीं होते. तो initially आजकल तो नहीं, लेकिन चंद साल पहले तक ऐसा था कि firewalls के ऊपर there were couple of limitations with regards to routing, but now those limitations are more or less over, because FortiGate पे भी आप BGP configure कर सकते हो, OSPF configure कर सकते हो, intermediate system to intermediate system routing configure कर सकते हो. Static routing में normally you need lesser resources. आपके जो memory के resources हैं और जो CPU के resources हैं, they are less consumed as compared to dynamic routing. Static routing simple होती है and for small networks it works fine. लेकिन अगर आपका network का size बड़ा हो या आपके network में changes frequent हो तो उसके अंदर static routing is not recommended. Dynamic routing relatively complex है लेकिन it is very scalable. अगर आपका एक larger network है जिसके अंदर changes frequent हैं तो the recommended routing option is your dynamic routing. Robustness आपके पास static routing में नहीं होती. Reason is कि if you are manually defining the routes, और अगर एक route fail हो जाता है तो उसका जो backup होता है वो आपको configure करना पड़ता है. By default it doesn't have capability of switching over to the next available route. Whereas in case of dynamic routing, this aspect is better. Automatically switch over to the next available path is there. Convergence का कोई concept यहाँ पे नहीं है, because the moment you will do the entry, आपकी routing table में populate हो जाएगी जो route detail है. Whereas in case of dynamic routing, it depends on the routing protocol. अगर BGP है तो उसमें convergence relatively slow होती है as compared to the other IGPs. IGPs में relatively BGP की निस्बत you have better convergence. ये एक और कॉन्फ़िगरेशंस के रेफरेंस से एक कंपैरिजन है इन राउटिंग प्रोटोकॉल्स पे जो FortiGate पे सपोर्टेड हैं, BGP, REP और OSPF या ISIs.
इंटरफेस लेवल कॉन्फ़िगरेशन सपोर्टेड है तीनों राउटिंग प्रोटोकॉल्स में, नेटवर्क लेवल कॉन्फ़िगरेशन भी सपोर्टेड है। एएस का कॉन्सेप्ट जो है वो बीजीपी में वैलिड है, आईएस और ओएसपीएफ में प्रोसेस इज देयर, प्रोसेस आईडी। रिप में कोई प्रोसेस आईडी या कोई किसी किस्म का एएस का कॉन्सेप्ट नहीं है। नेबर्स में बीजीपी में यू डिफाइन मैनुअल नेबर्स, ओएसपीएफ आईएस में नेबर्स आप ऑटोमेटिकली डिटेक्ट करते हो। वर्जन बीजीपी का एक ही चल रहा है, V4। रिप के अंदर आपके पास वर्जन 1 वर्जन 2 की ऑप्शन है। ओएसपीएफ आईएस अगेन वर्जन के रेफरेंस है, देयर इज नो वर्जन इन केस ऑफ ओएसपीएफ या आईएस स्टैंडर्ड आपका चल रहा है। ओएसपीएफ वर्जन 2 यूज होता है नॉर्मली फॉर IPv4 राउटिंग। राउटर आईडी बीजीपी में अवेलेबल तो है लेकिन मैंडेटरी नहीं है। लेकिन अगर हम बात करें राउटर आइडेंटिफिकेशन की ओएसपीएफ और आईएस में, तो ये कॉन्सेप्ट जो है राउटर आइडेंटिफिकेशन का, इट इज मैंडेटरी इन केस ऑफ बोथ ऑफ दीज राउटिंग प्रोटोकॉल्स। फिर इन राउटिंग प्रोटोकॉल्स के अंदर एल्गोरिथम के रेफरेंस से बात करें तो डिस्टेंस वेक्टर रिप में है, और बीजीपी में आपके पास नॉर्मली इसको हम कहते हैं वेक्टर वेक्टर बेस्ड डिस्टेंस वेक्टर, तो एग्जैक्टली नहीं, बीजीपी को हम बोलेंगे पैथ वेक्टर प्रोटोकॉल बीजीपी कहलाता है। whereas इन केस ऑफ ओएसपीएफ इट इज लिंक स्टेट। और वीकनेसेस अगर आप रिप की देखो तो 15 हॉप्स की लिमिटेशन है, किसी किस्म की ऐसी लिमिटेशन बीजीपी में या ओएसपीएफ में आपके पास नहीं है। ऑथेंटिकेशन आपके पास क्रॉस द बोर्ड सपोर्टेड है। V6 की सपोर्ट इन तीनों के अंदर, तीनों राउटिंग प्रोटोकॉल्स के अंदर बिल्ट इन है। मॉड्यूल वेरी करता है बट बिल्ट इन द सपोर्ट इज देयर। हमने इससे पहले जो स्टैटिक राउट्स हैं, वी हैव ऑलरेडी कॉन्फ़िगर्ड वन ऑड स्टैटिक राउट इन केस ऑफ और राउटिंग के जो हमारा स्टैंडर्ड टोपोलॉजी है उसमें हमने किया है, वी ऑलरेडी कॉन्फ़िगर्ड दैट मैनुअली। और उसमें हम आपने देखा था कि आपके पास बेसिकली 3 कंपोनेंट्स थे। एक था कि आपके पास यहाँ पर है कि किस नेटवर्क की ट्रैफिक के लिए किस गेटवे पे जाना है और ये गेटवे किस इंटरफेस से रीचेबल है। नाउ दीज आर 3 इंपॉर्टेंट थिंग्स जो कि बेसिकली स्टैटिक राउट्स के हवाले से इंपॉर्टेंट है कि विच डेस्टिनेशन, विच विल बी द गेटवे, और वो गेटवे हमें किस पोर्ट से रीचेबल है। ऑप्शनली वी कैन ऑल्टर दिस पैरामीटर ऑफ एडी एज वेल, एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस, और ये जो आज हम लैब करेंगे उसके अंदर वी वुड बी चेंजिंग दी एडी। उससे बेसिकली जो एक सिमुलेशन होती है एक्टिव और बैकअप राउट की, प्राइमरी और सेकेंडरी आईएसपी वाली, विल बी डूइंग दैट सिमुलेशन, राइट। फिर मूविंग फॉरवर्ड आपके पास यहाँ ऑप्शन है कि यू कैन डिफाइन ऑब्जेक्ट्स, नेम्ड ऑब्जेक्ट्स, और आप जो स्टैटिक राउट्स हैं उसमें यू कैन कॉल दी named objects instead of defining the subnets manually. What you can do, you can define the named objects और उन objects को भी आप इस्तेमाल कर सकते हो। इस तरह से स्टैटिक राउटिंग के अंदर इंटरनेट सर्विसेज ऑब्जेक्ट्स, जिनको हम ISDB ऑब्जेक्ट्स कहते हैं, उनको भी इस्तेमाल किया जा सकता है इन केस ऑफ FortiGate। और ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट पैरामीटर है, फुली क्वालिफाइड डोमेन नेम। जितनी भी नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल्स हैं उनमें FQDN ऑब्जेक्ट्स, फुली क्वालिफाइड डोमेन नेम ऑब्जेक्ट्स जो हैं, दे आर वेरी पॉपुलर, कि आप अपनी राउटिंग, यू कैन डिफाइन योर राउटिंग और योर एड्रेसेस बेस्ड ऑन FQDN ऑब्जेक्ट्स। जब आप FQDN ऑब्जेक्ट से इस्तेमाल करते हो तो एक बात इंपॉर्टेंट है कि आपको यू हैव टू हैव द DNS डिफाइंड ऑन योर फायरवॉल, ताकि नेम रेजोल्यूशन के लिए आप अप्रोप्रिएट DNS पे जा सकें। डायनामिक राउटिंग जिससे हमने बात की कि ऑल दीज मेन स्ट्रीम राउटिंग प्रोटोकॉल्स, रिप है, OSPF, IS, BGP, इट इज सपोर्टेड इन FortiGate। पॉलिसी बेस्ड राउटिंग भी सपोर्टेड है। अब पॉलिसी बेस्ड राउटिंग में क्या होता है कि एक तो आप इसे कॉन्फ़िगर करते हो सेपरेटली, यू हैव ऑप्शन ऑफ पॉलिसी राउट्स, और पॉलिसी राउट्स के हवाले से एक इंपॉर्टेंट चीज याद रखिएगा कि इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ 2 इंपॉर्टेंट थिंग्स, इफ एंड देन। इफ का मतलब ये होता है कि अगर ये क्राइटेरिया मैच करता है, इफ दिस क्राइटेरिया मैचेस देन डू दिस, तब आप ये करो। अब इसके अंदर अगर आप देखो तो इस
इस एग्जांपल के अंदर जो if के अंदर पैरामीटर्स हैं कि if the incoming interface is port 3, if the subnet is this, if the destination is this, अब ये सारे पैरामीटर्स जो हैं जो हमने डिफाइन किए हैं, ये बेसिकली if का क्राइटेरिया है कि अगर ये पैटर्न है ट्रैफिक का कि इस सोर्स से इस डेस्टिनेशन तक इस पोर्ट से निकलती हुई ट्रैफिक, तो क्या करो? if the incoming interface is this one, source ये है, उसमें destination ये है, then forward the traffic using this port और gateway उसका ये होना चाहिए. तो in simple terms हम कह सकते हैं कि policy routing is combination of if and then, कि if this criteria is fulfilled then apply this treatment, तब traffic को इस तरह से आप forward करो. तो we'll see one example. एक एग्जांपल हम इसकी करेंगे पॉलिसी राउटिंग की बीबी लैब के अंदर, तो दिस कॉन्सेप्ट विल बी फर्दर क्लियर. हाँ बिल्कुल सही कह रहे हो फौजान, आईपी ओएसपीएफ v3 जो है वर्जन 3 ओएसपीएफ का, इट इज फॉर IPv6 राउटिंग. क्लास को पता है कि ओएसपीएफ के बेसिकली 3 वर्जन्स हैं विच आर नोन, वर्जन 1, वर्जन 2 और वर्जन 3. याद रखें वर्जन 1 जो था ना, इट वाज एक्सपेरिमेंटल वर्जन, इट वाज नेवर ऑफर्ड इन द प्रोडक्शन. Version 2 was the version which was offered for IP version 4. IPv4 के लिए OSPF का version 2 was there in the market, अभी भी है. और IPv6 की राउटिंग के लिए they have to change the version. OSPF ने v3 लॉन्च किया, v3 इंट्रोड्यूस करवाया. ISIS इस मामले में बड़ा स्टेबल है. इंटरमीडिएट सिस्टम टू इंटरमीडिएट सिस्टम राउटिंग प्रोटोकॉल इज वेरी स्टेबल बिकॉज ISIS का कोई स्पेसिफिक वर्जन नहीं है, वो एक एक्सटेंडेड ISIS चल रहा है और वही मार्केट के अंदर अवेलेबल है और यूज हो रहा है. उसकी वजह यह है कि ISIS बेस कर रहा होता है TLV वैल्यूज के ऊपर, टाइप लेंथ वैल्यू एट्रीब्यूट्स के ऊपर. तो जब ISIS ने सपोर्ट ऑफर की हुई थी मार्केट को फॉर IPv4 राउटिंग, तो याद रखिएगा जब v6 पे मार्केट ने शिफ्ट किया या v6 वाज इंट्रोड्यूस, तो ISIS को अपना वर्जन अपग्रेड नहीं करना पड़ा, उसने सिंपली अप्रोप्रिएट TLVs ऐड कर दी टू हैंडल IPv6 पैकेट्स, दैट्स इट. तो ये टाइप लेंथ वैल्यू एट्रीब्यूट्स की वजह से ISIS को अपना ऑल टुगेदर नया वर्जन नहीं इंट्रोड्यूस करवाना पड़ा फॉर हैंडलिंग IPv6 राउटिंग. इट सिंपली डिड व्हाट कि उसने एडिशनल TLVs जो कि IPv6 राउटिंग की सपोर्ट के लिए थे, those TLVs they were added in ISIS. I hope it clarifies. I can see one question from फौजान का सवाल था. जी फौजान, आई होप इट क्लैरिफाइज. जी फौजान का सवाल था. जी फौजान, आई होप इट इज क्लियर. ओके फाइन. अच्छा, पॉलिसी बेस्ड राउटिंग के अंदर एक्शंस को भी हमें देख लिया. अच्छा, एक इंपॉर्टेंट चीज याद रखिएगा कि अगर हमने डायनामिक राउटिंग कॉन्फ़िगर की हो और ऑन टॉप ऑफ दैट हम पॉलिसी राउटिंग भी कॉन्फ़िगर करें, तो पॉलिसी बेस्ड राउटिंग को प्रेफरेंस मिलती है, राइट? पॉलिसी बेस्ड राउटिंग हैज मोर प्रेफरेंस एज कंपेयर टू योर डायनामिक राउटिंग. डायनामिक राउटिंग कहता है कि एक पर्टिकुलर डेस्टिनेशन के लिए पोर्ट 1 एज आउटगोइंग इंटरफेस इस्तेमाल करो, और पॉलिसी राउटिंग में आपने पोर्ट 2 डिफाइन किया हुआ है, तो पॉलिसी राउटिंग विल गेट द प्रेफरेंस. सो ऑर्डर ऑफ राउटिंग प्रायोरिटी इज कि अगर आपने अपने एनवायरनमेंट में FortiGate डिप्लॉय की है और FortiGate के ऊपर यू हैव कॉन्फ़िगर्ड डायनामिक राउटिंग एंड यू हैव आल्सो कॉन्फ़िगर्ड policy based routing, so policy based routing will get the precedence. सर ISDB ऑब्जेक्ट्स का मैंने पहले भी जिक्र किया कि इंटरनेट सर्विसेज ऑब्जेक्ट्स जैसे एप्पल का ऐप स्टोर है, फेसबुक वेब की एग्जांपल अगर क्लास रिकॉल करें तो लास्ट सेशन में हमने की थी, तो ISDB ऑब्जेक्ट्स भी आप डिफाइन कर सकते हो राउटिंग के अंदर. once you are defining the static route, so you can define static routes based on subnet, you can define static routes based on named address, you can define static routes based on internet services objects as well. IPv6 routing by default enable तो होती है लेकिन visible नहीं होती. So in feature visibility you have to basically make it visible. आपको visibility को enable करना पड़ता है. Then the configurations related to v6 would be available on FortiGate. Okay, let's have a quick knowledge check. Which of the following objects can be used to create static routes? G, what's the answer? ISDB objects or services objects?
सर्विस ऑब्जेक्ट्स बेसिकली लेयर 4 के होते हैं, जिसमें आप लेयर 4 की सर्विसेज को रेफर कर रहे होते हो. सो व्हाट्स द करेक्ट आंसर फॉर द फर्स्ट क्यूरी? Which of the following objects can be used to create static routes? Okay, fine. Rehan ठीक कह रहे हो, फौजान ने भी सही कहा. It's basically ISDB. So what is the expected behavior when stop policy routing action is used in a policy route? स्टॉप पॉलिसी राउटिंग अगर आप एनेबल कर देते हो एज एक्शन, तो होगा ये कि अब आपका जो FortiGate है, इट विल राउट द ट्रैफिक बेस्ड ऑन योर रेगुलर राउटिंग टेबल. अगर आपने पॉलिसी बेस्ड राउटिंग को डिसेबल कर दिया, या उसको जब आपने एक्शन ये सेट किया स्टॉप पॉलिसी राउटिंग, तो इसका मतलब क्या है कि इफेक्टिवली यू आर डिसेबलिंग द पॉलिसी बेस्ड राउटिंग. तो आपकी जो डिसीजन मेकिंग है दैट विल बी डन बेस्ड ऑन द रेगुलर राउटिंग टेबल. जो रेगुलर राउटिंग टेबल है उसकी बेसिस पे आप अपना डिसीजन मेकिंग करेंगे. ओके, हम ऐसा करते हैं, लेट्स डू बिट ऑफ लैबिंग रिलेटेड टू द राउटिंग. उसमें दिस इज आवर टोपोलॉजी, और हम ये काम करेंगे कि विल बी कॉन्फ़िगरिंग OSPF राउटिंग बिटवीन आवर लोकल FortiGate एंड गेटवे राउटर. और इस पे OSPF एरिया 0 कॉन्फ़िगर कर लेंगे एंड प्रोसेस आईडी वुड बी 1. वी कैन यूज प्रोसेस आईडी ऑफ 1. सो लेट्स स्टार्ट विद द बेसिक सिंपल एक्सरसाइज, और उसके बाद ग्रेजुअली कुछ और एक्सरसाइज भी हम करेंगे इसके अंदर राउटिंग के हवाले से. बट लेट्स स्टार्ट विद द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ बेसिक OSPF राउटिंग. स्टैटिक राउटिंग मैंने सरदस्त नहीं रखी बिकॉज उसको हम यूज करेंगे सेकंड एक्सरसाइज के अंदर. In exercise 1, I will be configuring the OSPF routing between these two entities. मैंने सर इसको ऑलरेडी अप किया हुआ है. My topology is up and let me just show you that it's there. और एक्सेस कर लेते हैं लोकल FortiGate को, गेटवे राउटर को, मैंने कॉन्फ़िगरेशंस वाइप कर दी थी, इस वजह से you can't see that. So what we can do के जो बेसिक एड्रेसिंग है उसके लिए लेट मी जस्ट टेक हेल्प फ्रॉम द नोटपैड. एक सेकंड दीजिएगा, लेट मी क्विकली get hold of the notepad file. Or so these are the interfaces. अनसेट करना पड़ेगा इसको, अनसेट मोड, और उसके बाद वी हैव टू अप्लाई द एड्रेस. It's my third interface. So what I've done, basically I've done the configurations on the local FortiGate with the help of notepad, और राउटर के ऊपर भी, गेटवे राउटर पे भी जो इंटरफेसेस हैं तो हमने पहले इसको मल्टीपल टाइम्स कॉन्फ़िगर किए हुए हैं. सो लेट्स नॉट वेस्ट टाइम, लेट्स स्ट्रेट अवे go on to the actual configurations. Let's go to the configuration mode, or here it is. I've done the configurations, और अब हम क्या करते हैं कि let's focus on the access. local windows से इसको access करते हैं.
BNC का मुझे वो एरर दे रहा है. Let me stop this node and let me start it again. It's fine. Just अगर आपको कोई ऐसा unusual error मिलता है, don't waste time in troubleshooting the simulator. आप simply एक दफा node को stop करें, start करें, it will start working. So let's access this और इसमें देख लेते हैं कि और as per topology हमारा 10.0.1.10 IP होना चाहिए. Local Windows पे 10.0.1.254 should be the gateway. जी हाँ, इसमें आफाक में मैंने टोपोलॉजी वेब सर्वर राउटर ही इस्तेमाल किया हुआ है. आपको अगर आप रिकॉल करें तो लास्ट भी हमने शायद एक नेट के अंदर इसको यूज किया था ना, जब हम HTTP पोर्ट अनेबल कर लिया था इसके ऊपर, तो वी सिमुलेटेड के इट इज एक्टिंग एज अ राउटर अदर वेब सर्वर. अदरवाइज आप यहाँ पर नॉर्मल भी कोई लिनक्स की डिस्ट्रीब्यूशन लगा सकते हैं, दैट इज आल्सो सपोर्टेड. को टाइनी कोर लिनक्स लगा दें तो. लेकिन आइडिया सिर्फ यही है कि यू हैव टू हैव अ नोड जो कि बेसिकली पोर्ट 80 की ट्रैफिक को रिसीव कर सके. तो राउटर कैन लिसन ऑन पोर्ट 80. तो इन माय इंटरनल टोपोलॉजी दिस इज एक्चुअली अ राउटर. Okay, let's now see कि मेरे इस लोकल विंडोज के ऊपर व्हाट्स द एड्रेस. टेन 0.1.10 है जी. 10.0.1.254 is the gateway. Let's quickly go to the command prompt और एक दफा गेटवे पिंग कर लेते हैं. 10.0.1.254 it is pinging. एक्सेस करते हैं इसको. And meanwhile, let's have a look at our task. The first task is to configure OSPF routing between local FortiGate and gateway router in area 0, process ID 1. I've got the access of my local FortiGate. तो basically मुझे port 1 और 2 ये जो दो सबनेट्स हैं इनको एरिया 0 OSPF पे एडवर्टाइज करना है. और इसी तरह से गेटवे राउटर के भी जो ये दो इंटरफेसेस हैं ईथरनेट 0/0 पे 10.200.1.0 का सबनेट चल रहा है और 10.200.2.0 का सबनेट चल रहा है ईथरनेट 0/1 पे. सो लेट्स डू द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द राउटिंग ओवर हियर. सर इसमें आपके पास ऑप्शन होती है, आप जाते हैं जी नेटवर्क में एक्सपैंड करते हैं नेटवर्क को. अगर आप देखो तो आपके पास ये रिप, OSPF, BGP, मल्टीकास्टिंग, नाउ दीज आर shown over here. ISIS आप कॉन्फ़िगर कर सकते हो via CLI, right? अच्छा जी, हमने OSPF कॉन्फ़िगर करना है. So let's click on the OSPF. OSPF में आप जानते हो कि राउटर आईडी इज मैंडेटरी. तो मुझे राउटर आईडी लाजमी तौर पे स्पेसिफाई करनी है यहाँ पे. So what I will do, I can give any unique router ID to my for local FortiGate. Let's say मैं कहता हूँ जी 1.1.1.1 is my router ID. और फिर एरिया डिफाइन करना है. तो एरिया 0 कहा था हमने कि इट शुड बी इन एरिया 0. तो क्रिएट न्यू पे करता हूँ क्लिक. एरिया भी आप बेसिकली डॉटेड डेसिमल नोटेशन में देते हो 0.0.0.0. आपके पास वो डिफरेंट जो कॉन्सेप्ट्स हैं विच आर रिलेटेड टू द नॉर्मल OSPF,
जैसे रेगुलर एरिया, नॉट स्टबी एरिया, स्टबी एरिया, सारी ऑप्शंस यहाँ अवेलेबल हैं। ऑथेंटिकेशन, एरिया लेवल ऑथेंटिकेशन, इंटरफेस लेवल ऑथेंटिकेशन, दैट इज ऑल्सो सपोर्टेड। लेकिन विल नॉट बी गोइंग इनटू दोस डिटेल्स जिसमें ऑथेंटिकेशन हम अनेबल कर रहे हो यहाँ पे OSPF में। लेट्स गो विद अ प्लेन विदाउट एनी ऑथेंटिकेशन। एरिया 0 मैंने कॉन्फ़िगर किया, और उसके बाद आई हैव टू ऐड द नेटवर्क्स जिन पे मैं चाहता हूँ कि एरिया 0 अप्लाई हो, ये प्रोसेस एक्टिवेट हो। तो उसके लिए क्या करूंगा, क्रिएट न्यू करूंगा नेटवर्क्स में जाके, एंड आई सिंपली नीड टू ऐड द एरिया नंबर विच इन माय केस इज एरिया 0, और आईपी एड्रेस और नेट मास्क यहाँ स्पेसिफाई कर दूंगा। इसका तरीका यहाँ पे ये होता है कि मैं बेसिकली अगर कंप्लीट नेटवर्क एडवर्टाइज करना चाहता हूँ तो आई वुड बी डूइंग लाइक दिस, फॉर एग्जांपल 10.202.0/24। अब मैंने अगर कंप्लीट नेटवर्क एडवर्टाइज करना है तो आई कैन डू लाइक दिस, और अगर मैं एक पिन पॉइंट सिंगल आईपी एडवर्टाइज करना चाहता हूँ तो आई कैन डू लाइक दिस, फिर /32 में एडवर्टाइज कर देता हूँ। मीन्स मैं बेसिकली इस पोर्ट पे 10.202.1 के ऊपर OSPF रन करता हूँ। I can do that. It has option complete subnet पे भी और single address पे भी। So let's be precise, और एक single address के ऊपर OSPF एडवर्टाइज करते हैं। Let's add the second network, और second network के अंदर भी जो एरिया नंबर है it's my area 000, और IP और net mask जो है I have to define like this, 10.200.1.1/32, 10.200.1.1/32 ओके करता हूं, एंड दैट्स इट। जो मेरा टारगेट था बेसिकली इन माय एक्सरसाइज, आई वांट टू कॉन्फ़िगर OSPF राउटिंग बिटवीन लोकल FortiGate एंड गेटवे। तो ये दो पोर्ट्स हैं, इन दोनों को मैंने एडवर्टाइज कर दिया प्लेन एरिया 0 के अंदर। इंटरफेस लेवल कॉन्सेप्ट्स की अगर कॉस्ट चेंज करनी है, राइट, एरिया इंटरफेस लेवल ऑथेंटिकेशन एनेबल करनी है, ऑल दो स्टफ इज अवेलेबल टू मी ओवर हियर। इस तरह से अगर मैं एडवांस ऑप्शंस में जाता हूँ तो यू कैन सी इंजेक्शन ऑफ डिफॉल्ट राउट, पैसिव इंटरफेसेस की कॉन्फ़िगरेशन, रीडिस्ट्रीब्यूशन, अगर आपने OSPF की डोमेन में एक्सटर्नल किसी और नेटवर्क से, किसी और डोमेन से, किसी और एज से राउट्स को रीडिस्ट्रीब्यूट करना है। सो ऑल दोस बेसिक फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स ऑफ राउटिंग दे आर अवेलेबल ओवर हियर इन FortiGate as well. So let's apply this change, और OSPF की कॉन्फ़िगरेशन हमने लोकल FortiGate एंड पे कंप्लीट कर ली। लेट्स गो क्विकली गो टू द राउटर साइड, और राउटर पे भी जाकर लेट्स डू द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ OSPF। राउटर OSPF प्रोसेस आईडी हमने कहा था 1 होगी। सो नेटवर्क ऑन दिस साइड इज 10.200.2.254। आई विल बी प्रिसाइजली एडवर्टाइजिंग दिस इन एरिया 0। दूसरा नेटवर्क है मेरा 10.200.1.254, और इसको भी प्रिसाइजली हम एरिया 0 में एडवर्टाइज कर लेते हैं। और अब एक काम और कर लेते हैं कि लेट्स डिफाइन वन लूप बैक इंटरफेस ऑन द राउटर। लूप बैक इंटरफेसेस आपके वर्चुअल इंटरफेसेस होते हैं, इनको आप टेस्टिंग पर्पसेस के लिए इस्तेमाल कर सकते हो। तो मैं 11.1.1.1 का एक लूप बैक डिफाइन कर रहा हूँ /24 के साथ ऑन गेटवे राउटर, और इसको भी मैं OSPF में जाऊंगा, राउटर OSPF 1, और इसको भी मैं एरिया 0 में एडवर्टाइज कर लेता हूँ, ऑल 0 एरिया 0। तो बेसिकली मैंने 3 इंटरफेसेस पे OSPF चला लिया। आई कैन चेक दिस यूजिंग कमांड ऑफ शो IP OSPF इंटरफेस ब्रीफ। लूप बैक पे OSPF कॉन्फ़िगर किया, और दोनों इंटरफेसेस जो ये वाले इनके ऊपर आई हैव कॉन्फ़िगर्ड द OSPF। सो इन नेक्स्ट स्टेप लेट्स इंश्योर कि आपका जो नेबर रिलेशनशिप है that should be up, and you guys can see that it is showing me that the pair is up on both the links। Ethernet 0/0 पे भी आपको पेयर नजर आ रहा है, और Ethernet 0/1 पे भी आपको पेयर नजर आ रहा है। सर मैं इस चीज को FortiGate एंड पे भी वेरीफाई कर सकता हूँ। अगर FortiGate एंड में मैंने राउटिंग टेबल देखना है तो उसके लिए आपके पास यहाँ कमांड होती है गेट राउटिंग इन्फो, गेट राउटर इन्फो और राउटिंग टेबल की कमांड आप देते हैं, गेट राउटर इन्फो राउटिंग टेबल, एंड यू प्रेस एंटर, सॉरी ऑल का वर्ड साथ लिखते हैं,
all enter किया, here it is. You guys can see that it is showing me 3 directly connected networks, और इसके अलावा जो मैंने लूप बैक डिफाइन किया था गेटवे राउटर के ऊपर, you guys can see I'm learning that loop back via 2 paths. I'm learning it via port 1, I'm learning it via port 2 as well, right? So anything which I'm generating on um, any configuration which I'm doing related to routing on gateway router, वो यहाँ पर आपके पास routing table में आ रही है. और अगर मैं इसको verify करना चाहूँ ping करके, तो execute का कीवर्ड होता है जो आपको basically ping से पहले लगाना पड़ता है. Execute ping 11.1.1.1 enter करते हैं. You guys can see that from local FortiGate I am able to ping this destination of 11.1.1 जो मैंने gateway router पे define की थी. Pretty straightforward, इसमें कोई ऐसा आपके पास कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है. अगर आप बेसिक राउटिंग से रिकॉल करो तो आपके पास आपको यू विल बेयर मी आउट के वहां पे आपके पास एक्सटेंडेड पिंग होती थी. नॉर्मल पिंग भी होती है और एक एक्सटेंडेड पिंग होती है. एक्सटेंडेड पिंग ऐसी इसमें होती है कि आप उसमें अपने सोर्स एड्रेस पिंग में चेंज कर सकते हो. बाय डिफॉल्ट जो पिंग के पैकेट्स आते हैं तो बाय डिफॉल्ट उसमें जो सोर्स एड्रेस होता है दैट इज द आउटगोइंग एड्रेस, आउटगोइंग इंटरफेस का आईपी होता है. अगर मैं चाहता हूं कि सोर्स जो है उस पिंग के पैकेट में इट शुड बी अदर देन योर आउटगोइंग इंटरफेस आईपी, तो मेरे पास इस तरह की पैरामीटर्स चेंज करने के लिए ऑप्शंस हैं. आई हैव गॉट द कॉन्सेप्ट ऑफ एक्सटेंडेड पिंग. एक्सटेंडेड पिंग में अपार्ट फ्रॉम अदर थिंग्स यू कैन चेंज द सोर्स ऑफ द पैकेट्स. आप टाइप ऑफ सर्विस की वैल्यू, जो टॉस की वैल्यू होती है क्वालिटी ऑफ सर्विस में, उसको चेंज कर सकते हैं. तो यहाँ पर भी आपके पास वो ऑप्शन है एक्सटेंडेड पिंग की. कैसे करते हैं? एग्जीक्यूट के बाद अगर मैं पिंग ऑप्शंस आपको कमांड दूं, एग्जीक्यूट पिंग ऑप्शंस और क्वेश्चन मार्क करूं, तो you guys can see over here कि there are different options which are available to me. Repeat count, source अगर change करना है तो source can be changed. अब source यहाँ specify कर दें. तो execute ping options के बाद toss का parameter अगर आपने change करना है तो you can do that. df bit अगर change करना चाहते हैं, data size आप change करना चाहते हैं, byte size. So this is equivalent to this command. Execute ping options is equivalent to the extended, it's a type of extended ping in FortiGate. So please class confirm kar de, class so far is with me. Okay सर, इसी तरह से एग्जीक्यूट में ट्रेस राउट की ऑप्शन भी है. इफ यू वांट टू इनिशिएट अ ट्रेस राउट तो एग्जीक्यूट ट्रेस राउट एंड देन यू कैन स्पेसिफाई द डेस्टिनेशन एड्रेस. आप डेस्टिनेशन एड्रेस जो है वो स्पेसिफाई कर सकते हो. सो एग्जीक्यूट ट्रेस राउट, एग्जीक्यूट पिंग, और आई गेस के एग्जीक्यूट के बाद आपके पास टेलनेट की ऑप्शन भी आती है. एग्जीक्यूट टेलनेट, राइट? और आगे आप जो एड्रेस बताओगे तो इट विल यू कैन इनिशिएट द टेलनेट फ्रॉम हियर. एग्जीक्यूट का कीवर्ड आपको चाहिए होता है. ओके, दिस वाज आवर फर्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट रिक्वायरमेंट थी. एक और चीज एज अ साइड नोट ध्यान में रखिए कि वी कैन ऑलवेज क्रिएट लूप बैक एड्रेस ऑन आवर लोकल FortiGate एज वेल. आप लोकल FortiGate पे लूप बैक इंटरफेस कॉन्फ़िगर कर सकते हो. यू कैन कॉन्फ़िगर लूप बैक एड्रेस. इट कैन बी डन वाया CLI and it can be done via GUI as well. Graphical user interface से भी कर सकते हो और CLI से भी कर सकते हो. तो एक ऐसा करते हैं, एक इंटरफेस कर लेते हैं लूप बैक का कॉन्फ़िगर CLI से और एक कर लेंगे GUI से. तो कैसे किया जाता है सर? कॉन्फ़िग सिस्टम इंटरफेस, then you will say edit और लूप बैक 1 कर दें, इसको नाम दे दें लूप बैक 1 का. Now this loopback 1 is a label, remember that. इसीलिए आपसे वो कह रहा है कि new entry of loopback 1 is added. और फिर आपके पास ये जो loopback है, you want to basically specify कि ये किस virtual domain का हिस्सा हो. VDOM, actually हम VDOM का टॉपिक अलग से ही पढ़ेंगे. It's a concept which is equivalent to virtual firewall. कि अगर आप physical firewall को multiple virtual firewalls में divide करना चाहें FortiGate में तो आप कर सकते हैं. तो उस वर्चुअल फायरवॉल को यहाँ वर्चुअल डोमेन कहा जाता है, VDOM. बाय डिफॉल्ट जो फिजिकल फायरवॉल होती है उसमें एक VDOM होती है, इट्स ऑलरेडी डिफाइंड, और वो VDOM रूट VDOM होती है. इसका मतलब है
कि जो पोर्ट्स या इंटरफेसेस इस वक्त एग्जिस्टिंग हैं इसके ऊपर, दे ऑल आर पार्ट ऑफ रूट वीडॉम। इसीलिए जब हमने एक नया इंटरफेस क्रिएट किया है लूपबैक 1, तो वी हैव डिफाइंड कि दिस इंटरफेस विल बी पार्ट ऑफ रूट वीडॉम। ये रूट वीडॉम का हिस्सा होगा। आईपी एड्रेस इस पे स्पेसिफाई किया जा सकता है। मैं ऐसा करता हूँ, इस पे आईपी दे देता हूँ 55.5.5.5 और /24 के साथ। ऐसे ही हाइपोथेटिकली एक आईपी एड्रेस दे दिया 55 का, और इस पे मैं कहता हूँ यार सेट अलाउ एक्सेस पिंग अलाउ करवा देते हैं, और सेट टाइप बतानी पड़ती है आपको लूप बैक कि द टाइप ऑफ दिस इंटरफेस इज लूप बैक। सो दिस इज हाउ यू कैन डिफाइन द लूप बैक एड्रेसेस ऑन योर FortiGate। आपको जब लूप बैक डिफाइन करते हो तो रिमेंबर यू डोंट हैव टू कमिट। हमने पढ़ा था कि आपको FortiGate के अंदर कमिट नहीं करना पड़ता कि यू आफ्टर डिफाइनिंग को आप चेंजेस कमिट करो। ऑटोमेटिकली वंस यू क्विट आउट ऑफ द इंटरफेस तो चेंजेस आर ऑटोमेटिकली रेप्लिकेटेड। अभी हमने जो ये इंटरफेस कॉन्फ़िगर किया है, सो इसको वी कैन सी दैट शुड बी विजिबल टू अस इन दी GUI एनवायरनमेंट। एक दफा इसको ढूंढते हैं कि जो हमने CLI से कॉन्फ़िगर किया लूपबैक 1 इंटरफेस, वेयर दैट इंटरफेस इज। ये आपको नेटवर्क और इंटरफेसेस के अंदर मिलेगा, नेटवर्क इंटरफेसेस। And can you please confirm, can you guys see this loopback 1 over here, 55555? Okay. इसी तरह से अगर मैंने GUI से करना हो तो एक loopback 2 GUI से भी करते हैं। कैसे करेंगे? क्रिएट न्यू आपको नजर आ रहा है यहाँ पे ऑप्शन, क्रिएट न्यू। सो लेट्स क्रिएट अ न्यू इंटरफेस, और यहाँ पर अगर आप इंटरफेस की टाइप में जाओ तो can you please see this over here? There's a type which is known as loopback interface. I need to select the type as loopback, और इसको अब मैं नाम एक दे देता हूँ loopback 2 का। I can give it a name as loopback 2। टाइप इसकी loopback है, एड्रेस इस पे स्पेसिफाई करना है। So let me specify the address on this loopback as 66.6.6.6 और mask है /24, 66.6.6/24। इस पे भी एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सेस के लिए वी कैन अनेबल द पिंग, राइट। सो मैंने एक लूपबैक क्रिएट किया, उसको मैंने टाइप स्पेसिफाई कर दी लूपबैक की, और उस पे एक आईपी दे दिया। अब मैं इसको ओके कर सकता हूँ, आई कैन डू ओके टू इट। करता हूँ इसको ओके, और ये मुझे विजिबल होना चाहिए यहाँ पर। यू कैन सी आई हैव गॉट नाउ 2 लूपबैक्स ओवर हियर। सर अगर मैं इस पॉइंट इन टाइम में अपनी लोकल FortiGate पे जाता हूं और वहां जाके कमांड देता हूं राउटिंग टेबल चेक करने के लिए, गेट राउटर राउटिंग इंफॉर्मेशन, गेट राउटर इन्फो राउटिंग टेबल ऑल। तो यू गाइस कैन सी दैट दो लूपबैक्स जो मैंने डिफाइन किए हैं, दे आर शोन टू मी इन द राउटिंग टेबल एज डायरेक्टली कनेक्टेड। मुझे यहाँ पे विजिबल है, राइट, दे आर विजिबल टू मी ओवर हियर। और इन पे मैं आई कैन एडवर्टाइज OSPF एज वेल। मैं आई कैन ऑलवेज कॉन्फ़िगर OSPF ओवर हियर, और उस पे GUI से OSPF कॉन्फ़िगर कर लेते हैं। वी कैन गेट बैक टू आवर OSPF राउटिंग अगेन, और जो OSPF का हमारा इंस्टेंस है, व्हाट वी नीड टू डू, सिंपली नीड टू ऐड द नेटवर्क्स फॉर द एडवर्टाइजमेंट, और इंटरफेसेस भी ऐड कर सकते हैं डायरेक्टली। अगर मैं कहूँ कि लूपबैक पे कॉन्फ़िगर करो, राइट, ऑथेंटिकेशन कॉन्फ़िगर नहीं करनी, और दिस इज माय loopback 1। अब देखें, this is another style of configuring OSPF। I'm simply I'm enabling the routing protocol on the interface directly. Now this is also supported। अपने loopback 1 के ऊपर OSPF configure करना है, so you can do it like this। और इस तरह से let's add our second interface which is loopback 2 in OSPF। so simply आप loopback 2 को यहाँ पे ऐड कर दें, और इसको हम नाम दे देते हैं loopback 2 का। बाकी पैरामीटर्स यू कैन कीप डिफॉल्ट, और and here it is। so let me apply these changes। so here it goes। अभी होना क्या चाहिए कि since I have advertised 2 loopbacks on this local FortiGate, और इन दोनों के दरमियान means local FortiGate और गेटवे राउटर के दरमियान you have
OSPF राउटिंग कॉन्फ़िगर्ड, तो ये राउट पॉपुलेट करना चाहिए गेटवे राउटर के अंदर। सो लेट्स गो टू द गेटवे राउटर और वहां जाके उसका राउटिंग टेबल देखते हैं। शो आईपी राउट प्रोटोकॉल OSPF या खाली OSPF लिख देते हैं, एंटर करें। सॉरी, गेटवे राउटर पे शो आईपी OSPF नेबर आपने किया, आपके पास नेबर आ गए। शो आईपी राउट करते हैं, आपके पास राउटिंग टेबल में एंट्री आ गई। राउट्स मेरे पास प्रोपेगेट होके गेटवे राउटर पे आने चाहिए। शो आईपी OSPF नेबर, दोनों नेबर आप हैं, और शो आईपी राउट इसको डिलीट करूं और इस पर मैं डायरेक्टली एडवर्टाइज करूं, इस नेटवर्क को एडवर्टाइज करूं। सो लेट मी सी द इफेक्ट, क्योंकि एरिया नंबर उसमें मेंशन नहीं था। 55.5.5.5 और /24 के साथ था। आई कैन एडवर्टाइज इट विद /32 और ओके करता हूँ थर्ड। और इस तरह 66 वाला था, उस पे भी एरिया स्पेसिफाई किया 66/32, ओके किया। एडवर्टाइज्ड ऑल दीज 4, एरिया में चले गए और कॉन्फ़िगरेशन सेव। लेट्स सी द इफेक्ट। Let's go back to our gateway router. And now you can see 55 is there. आपको उसमें एडवर्टाइज सबनेट कंप्लीट ही करना है, उधर से it's not working. Now you can see that you have entries of both 55 and 66 on in the gateway router, right? अगर मैं पिंग करता हूँ तो मैंने पिंग उस इंटरफेस पे एक्टिवेट की हुई है। लेट मी सी पिंग। पिंग मुझे उस इंटरफेस पर एक्टिवेट करनी है। लेट मी गेट बैक टू द इंटरफेस और अगर हम जाते हैं इंटरफेसेस पे, सो लेट्स सी के you have administrative access enabled on this. लोकल लूपबैक पे पिंग है और ओके, अच्छा, राउटिंग टेबल का क्वेश्चन है कि फ्रॉम वेयर वी कैन चेक द राउटिंग टेबल। और इसमें आपके पास राउट मॉनिटर्स होते हैं।
मॉनिटर के इसके अंदर आपके पास ना एक ऑप्शन आती है मॉनिटर की सब मेन्यू होता है मॉनिटर का। 6.4 की केबीएम के अंदर ना वो सब मेन्यू यहाँ पे नहीं है। उस मॉनिटर के अंदर जाके ना यू हैव ऑप्शन फॉर राउट मॉनिटरिंग। तो वहां से यू कैन व्यू राइट मॉनिटर राउटिंग मॉनिटर इधर लॉग्स एंड रिपोर्ट्स के नीचे। और सीएलआई के अंदर आपके पास ऑब्वियसली दैट ऑप्शन इज देयर। सीएलआई के अंदर आप इसको
राउटर इन्फो ओएसपीएफ नेबर्स, इसमें आप देखो आपके पास दो नेबर्स हैं, यू हैव टू नेबर्स ओवर हियर। नेबर की राउटर आईडी जो है दैट वी हैव नॉट डिफाइंड एनी स्पेसिफिक राउटर आईडी ऑन द गेटवे राउटर, तो जो सबसे हाईएस्ट एड्रेस था इट टुक दैट एज नॉर्मल प्रैक्टिस, राइट। तो नेबर आईडी आपको 10.204.254 मिल रही है ऑन दिस लोकल 48। तो ये वाली कमांड है गेट राउटर इन्फो ओएसपीएफ नेबर। और जो जीयूआई के अंदर होती है राउटिंग की डिटेल, जो पुराने वर्जन्स हैं उनमें तो जहां पे आप राउटिंग डिफाइन कर रहे होते हो वहीं पे बिल्ट इन आपके पास ऑप्शन आती है। लेकिन 6.4 का जो वर्जन है इसमें लॉग एंड रिपोर्ट के नीचे यहां पर आपको नजर नहीं आ रहा, यहाँ पर आपके पास मॉनिटर का एक अलग से मेन्यू होता है, उसके अंदर राउटिंग मॉनिटर है। उस राउटिंग मॉनिटर में आप जाते हो तो फ्रॉम देयर यू कैन फाइंड दी नेटवर्क्स और राउटिंग डिटेल्स। आई होप इट क्लैरिफाइज। ये किसका सवाल था? इट वाज ऑफ रेहान। रेहान, आप गॉट द पॉइंट। आपने लिखा हाउ टू चेक दी ओएसपीएफ नेबर। ओएसपीएफ नेबर चेक करने के भैया ये कमांड है गेट राउटर इन्फो और ओएसपीएफ नेबर। एग्जैक्टली आप देख सकते हो कि यू कैन गेट दी टू नेबर्स, और इसमें नेबर आईडी हमें 4.254 क्यों नजर आ रही है, मैंने डिफाइन कर दिया, बता दिया कि हाईएस्ट एड्रेस है क्योंकि मैंने हार्डकोर नहीं किया गेटवे राउटर के ऊपर। और जो जीयूआई के अंदर है, जीयूआई में जो पुराने वर्जन्स थे 6.2 6.0 उसके अंदर आपके पास ये राउटिंग मॉनिटर की ऑप्शन विद इन जो इंस्टेंस है राउटिंग का उसके अंदर अवेलेबल होती थी, बट नाउ दे आर सेग्रीगेटेड। आपको मॉनिटर में जाना पड़ता है, मॉनिटर और राउटिंग मॉनिटर। लेकिन समहाउ जो ये इसका केवीएम है जो ये कन्वर्ट करके आप इंस्टॉल करते हो एफ के अंदर, इसके अंदर वो सब मेन्यू नहीं है। ओके, नाउ लेट्स मूव टू दी नेक्स्ट रिक्वायरमेंट। इसके अंदर जो हमारी रिक्वायरमेंट थी इसमें वी हैव डन टू मोर थिंग्स ओवर हियर, और व्हाट वी हैव डन कि वी हैव कॉन्फ़िगर्ड टू loopbacks, one via CLI and one via GUI। और अच्छा, नेक्स्ट हम ये करेंगे यार कि वी वुड बी डूइंग नेक्स्ट एक्सरसाइज जिसमें कि वी विल बी कॉन्फ़िगरिंग अ राउट फेल ओवर। और पहले स्टेप में हम राउट फेल ओवर करेंगे और फिर वी विल बी कॉन्फ़िगरिंग टू लिंक हेल्थ मॉनिटर्स ऑन बोथ ऑफ दीज लिंक्स, और इन लिंक्स की हम हेल्थ मॉनिटरिंग करेंगे और फिर उसके बाद एक फेलियर कंडीशन क्रिएट करेंगे और विल सी कि हाउ द ट्रैफिक इज शिफ्टेड ऑन द अदर पोर्ट। तो फर्स्ट स्टेप वुड बी टू कॉन्फ़िगर द राउट फेल ओवर। राउट फेल ओवर कैसे कॉन्फ़िगर करते हैं कि लेट्स मेक दिस पोर्ट 2 टू एक्ट एज प्राइमरी। इसको सिमुलेट करते हैं कि हमें इसको इसे कॉन्फ़िगर करना है एज प्राइमरी आईएसपी लिंक, राइट। और जो मेरा पोर्ट 2 को हम करते हैं प्राइमरी के तौर पे और पोर्ट 1 को हम रख लेते हैं सेकेंडरी के तौर पे कि दिस विल बी माय सेकेंडरी आईएसपी एंड दिस विल बी माय प्राइमरी आईएसपी। So let's configure this over here, and in fact we can specify over here as well, configure the port 1 connection as primary internet link and port 2 connection as backup internet link। और on top of that we'll be configuring the route failover mechanism, और फिर बाद में हम ये link health monitors भी इसके ऊपर configure करेंगे। So this will be my exercise 2A।
राइट. सो पोर्ट 1 कनेक्शन को, इस वाले कनेक्शन को हम लेते हैं एज प्राइमरी इंटरनेट कनेक्शन एंड पोर्ट 2 कनेक्शन एज माय बैकअप लिंक. और उसके बाद विल बी कॉन्फ़िगरिंग फेलोवर, और साथ along with that we'll be configuring two link health monitors to monitor the status of both port 1 and port 2 routes, right? I hope class is with me on the requirement. पहले हमारा फोकस होगा बेसिकली ये काम करना, और उसके बाद जब ये कंप्लीट हो जाएगा तो विल बी डूइंग दिस वर्क, राइट? ओके, let's get back to our topology again, और वहां जाके एक काम मुझे ये करना होगा कि लेट मी रिमूव दी OSPF राउटिंग. OSPF राउटिंग को हम एक दफा रिमूव कर लेते हैं. कैसे रिमूव करेंगे? वी नीड टू बेसिकली डिलीट दीज नेटवर्क्स को एक साथ भी सेलेक्ट कर लेंगे. वी कैन सेलेक्ट ऑल ऑफ देम टुगेदर. लेट्स डिलीट देम. और उसके बाद जो एरिया डिफाइन किया हुआ है, लेट्स डिलीट दैट एरिया एज वेल. राउटर आईडी आप रहने दें, अप्लाई करते हैं चेंजेस, एंड हियर इट गोज. सो this is to be deleted as well. So now there is no OSPF routing on the local FortiGate. और यही काम करते हैं हम बेसिकली गेटवे राउटर पे भी. लेट्स रिमूव द राउटिंग फ्रॉम द गेटवे राउटर. राउटर OSPF1 और राउटर OSPF1 किया. So now let's start with the configuration, जिसमें कि पोर्ट 1 को हमने प्राइमरी इंटरनेट कनेक्शन बनाना है और पोर्ट 2 को एज बैकअप इंटरनेट कनेक्शन बनाना है. बहुत आसान काम है. स्टैटिक राउट्स पे आप जाते हैं और यहाँ पर लेट्स क्रिएट अ न्यू स्टैटिक राउट. इसके अंदर सबनेट पे जाऊंगा. आई विल से कि फॉर एनी ट्रैफिक यूज द गेटवे एड्रेस ऑफ 10.200.1.254, दिस वन. और इंटरफेस में कहता हूँ इस्तेमाल करो पोर्ट 1 का. यूज दिस पोर्ट 1 एज द इंटरफेस. सो दिस इज माय फर्स्ट स्टैटिक राउट, जिसमें कह रहा हूँ कि यार फॉर एनी ट्रैफिक गेटवे शुड बी 10.200.1.254 और पोर्ट करो इस्तेमाल 1 का. अब क्लास यहाँ पर दो इंपॉर्टेंट चीजें देखें. फर्स्ट इज एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस. मैं इसका इस पर्टिकुलर स्टैटिक राउट का जो एडी वैल्यू है उसको 10 रखता हूँ. let me keep this as default. So there is one static route which is pointing towards the next hop of this. एक और static route ऐड करते हैं, और इसके लिए what I will do कि I will say that the next hop is 10.200.2254 और इंटरफेस जो मैं सेट करता हूँ पोर्ट नंबर 2. So I say कि for any traffic go to this gateway address और पोर्ट आपका है पोर्ट 2. और since I want to make port 2 as my backup, so I can increase the AD value of this static route. इसकी मैं AD value बढ़ा दूंगा. Okay करता हूँ, and here it goes. Now I've got two static routes, and remember, because of the different administrative distance values, different AD values की वजह से हमने पोर्ट 1 वाले स्टैटिक राउट को एक तरह से प्राइमरी स्टैटिक राउट बना दिया, और ये उसका बैकअप होगा. द पोर्ट 2 स्टैटिक राउट विल एक्ट एज अ बैकअप, राइट. एक काम हम गेटवे राउटर पे कर लेते हैं, क्योंकि हमने वी हैव रिमूव्ड द OSPF राउटिंग फ्रॉम द गेटवे राउटर. सो हम यहाँ पर दो अदद राउट्स डिफाइन कर लेते हैं 10.0.1.0 तक जाने के लिए. एक में हम कहेंगे नेक्स्ट हॉप होगा 10.200.1.1 और दूसरे के अंदर it will be 10.200.2.1. So I've just added two static routes or on over here, एक इसके लिए, एक इसके लिए, और that's it. अच्छा, अब मैंने बेसिकली I want to test this as well ना, तो उसके लिए पॉलिसीज चाहिए होगी, और पोर्ट 3 to पोर्ट 2 और पोर्ट 3 to पोर्ट 1. So I need to basically add the policies के लिए पॉलिसीज एंड ऑब्जेक्ट में जाते हैं, फायरवॉल पॉलिसी में जाते हैं,
by default implicit deny की policy है. Let me add a policy. Let me say कि यार it is my primary internet access or incoming interface would be port 3, outgoing interface is port 1. source के लिए subnet create कर लेते हैं. Let's create a subnet address और नाम इसको देते हैं local subnet का. Subnet over here would be 10.0.1.0 10.0.10/24 any interface fine. So local subnet हमने add कर देना है as source address. So let's add over here as source address. Destination can be any, service can be any, except netting को हम नहीं touch करेंगे. So for primary internet access port 3 से port 1, local से subnet से destination, right? And I will be keeping all as default, all sessions logging, and I will say okay. So I've got one policy for port 3 to port 1. This is for my primary internet access. एक जो backup access है port 3 से port 2 वो build कर लेते हैं. Let's build backup access. I will name this as says incoming interface port 3, outgoing interface port 2, source local subnet, destination can be any, service again any, except flow based आपने किया इसको logging enable कर लें all sessions, and I will say okay. So we have got port 3 to port 1 as my primary access, so port 3 से port 2 as secondary access, right? और मेरे पास जो हैं routes आपके पास इसके static routes वो भी 10 AD है port 1 वाला और 20 AD है port 2 वाला. So इसको मैं देख सकता हूँ. I can see that on the routing table. अगर मैं CLI पे जाऊँ, if I go to my CLI, sorry. एक जरा सा स्नैपशॉट ले लेते हैं. This command. अच्छा जी, अभी यहाँ पे अगर मैंने एक्टिव राउट्स देखने तो उसके लिए तो मेरे पास ऑप्शन होती है गेट राउटर इन्फो routing table all. और here you guys can see that it is showing me the best route. आप लोग देख रहे हो जो एक 00 वाला डिफॉल्ट राउट है, showing me via पोर्ट नंबर 1 10.200.1.254 नेक्स्ट हॉप है, and port 1 is the exit point, and it is because of that AD. by the way, अगर मैंने उस बैकअप राउट को भी देख रहा हूं तो उसके लिए मेरे पास कमांड होती है गेट राउटर इन्फो राउटिंग टेबल डेटाबेस. अगर मैं ये करता हूं तो now you can see it's showing me all the entries in the database. Now the backup route, which is not the best route right now, and it is also showing me that, right? और आप देख सकते हो कि ये the reason why this is backup is because of this AD is more, right? 10 इसका 20 इसका. लेट मी डू वन थिंग कि मेरे पास एक एक्टिव राउट है, दूसरा बैकअप राउट है, और
मैं ऐसा कर सकता हूँ कि व्हाट आई कैन डू कि इफ आई प्लेस सम लूप बैक एड्रेस ऑन द गेटवे, देखता हूँ लूप बैक यहाँ पर गेटवे पड़ा हुआ है, शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ, देयर इज वन लूप बैक 1111 है यहाँ पर। और मैं अगर अपना इंटरनल वेब सर्वर जो कि मेरा इंटरनल राउटर भी है उसको भी इस्तेमाल करूँ फॉर टेस्टिंग, सो लेट मी डू वन टेस्टिंग जस्ट टू सी कि यार कौन सा वाला इंटरफेस है विच इज कैरिंग द ट्रैफिक। ट्रेस आउट तो कर सकते हैं, उसी उसी इसलिए जा रहा हूँ ना रेहान, उसी इसलिए जा रहा हूँ ना यहाँ से। अब जस्ट यहाँ पे जरा फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ जाती है ना आपके पास, आप डिफरेंट तरह की और ट्रैफिक भी इजीली जनरेट कर लेते हो। ओके, सो लेट्स गो टू आवर वेब सर्वर और इस पे आई गेस कि आपके पास बेसिक कॉन्फ़िगरेशन है 10.0.120 है। गेट पे देख लेते हैं 10.0.1.254 रीचेबल है, दिस पोर्ट 3 आई गेस इट इज देयर। शो रनिंग सेक्शन आईपी राउट करते हैं। अब देखो मेरे पास एक लूप बैक है, आई गॉट वन लूप बैक राइट ऑन ऑन द राउटर, और यहाँ पर मेरे पास एक एक्टिव राउट है, एक बैकअप राउट है, और मुझे ये देखना है कि मेरी ट्रैफिक जो है इट शुड फॉलो द एक्टिव राउट राइट, मींस पोर्ट 1 से यहाँ पे ट्रैफिक जानी चाहिए इस लूप बैक तक। तो on this internal web server what I can do, I can initiate a trace route to 11.1.1.1, ट्रेस करते हैं। और बाय द वे ट्रेस किस हॉप से जाना चाहिए, फर्स्ट हॉप ऑब्वियसली इट विल बी पोर्ट 3 and then it should follow this route 10.200.1.254। पहला हॉप गेटवे which is right, and second hop as expected it is 10.200.1.254। the class is with me on this कि why the second hop is 10.200.1.254, ये वाला मैंने यहाँ से ट्रेस इनिशिएट किया पहला हॉप ये, उसके बाद दो आपके पास ऑप्शंस थी, पोर्ट 1 भी था पोर्ट 2 भी था। पोर्ट 1 पे जो डिफॉल्ट राउट था उसका एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस वाज 10, और पोर्ट 2 पे जो डिफॉल्ट राउट था उसका एडी वैल्यू 20 था। बिकॉज ऑफ लोअर एडी उसने इस राउट को एक्टिव बनाया, मींस दिस वाज माय प्राइमरी राउट एंड दिस इज माय सेकेंडरी राउट राइट। तो यू कैन सी दैट फ्रॉम हियर इट इज फॉलोइंग दिस पाथ। एक काम और भी कर सकते हैं, वो ये कि अगर मैं यहाँ से पिंग करूँ इसको, इनिशिएट पिंग, पिंग इज वर्किंग, और GUI में ग्राफिकल यूजर इंटरफेस पे अगर मैं जाता हूँ तो आपके पास लॉग्स एंड रिपोर्ट में एक ऑप्शन है फॉरवर्ड ट्रैफिक की। कैन यू गाइस सी दिस फॉरवर्ड ट्रैफिक ऑप्शन? फॉरवर्ड ट्रैफिक ऑप्शन में बाजू का थोड़ा लेट पॉपुलेट करता है बट इट डू पॉपुलेट। कैन यू प्लीज सी कौन सी वाली पॉलिसी इस्तेमाल हो रही है आपके 1111 तक पहुंचने के लिए? आप प्लीज कंफर्म करते हो? कैन यू गाइस सी दिस फॉरवर्ड ट्रैफिक का जो लॉग्स एंड रिपोर्ट्स के अंदर आपको डेस्टिनेशन नजर आ रही है 1111, और ये जो ट्रैफिक हमारी गई which policy is being used? It's for the primary interface, primary internet access, और primary internet access जो policy थी वो it was from port 3 to port 1। मेरे पास यहाँ ऑप्शन होती है, I can add few more। ओके सर, ऐसा करते हैं कि लेट्स एक तो जरा
जिसे कहते हैं ना कि एलिमेंट्री किस्म की टेस्टिंग है इस राउट फेल ओवर के लिए, राइट। और वो एलिमेंट्री टेस्टिंग क्या है कि अगर मैं इस इथरनेट 0/0 को गेटवे राउटर की साइड पे इफ आई मेक दिस इंटरफेस डिसेबल्ड, अगर मैं गेटवे राउटर पे जाऊं और इंटरफेस इथरनेट 0/0 को शट डाउन कर दूं, रिमेंबर दिस वाज आवर प्राइमरी लिंक। अब क्या होना चाहिए, व्हाट शुड हैपन नाउ? मैं अगर वेब सर्वर पे आता हूं और दोबारा से ट्रेस राउट इनिशिएट करता हूं, तो सर किस पाथ से मेरा ट्रेस जाना चाहिए? विच शुड बी द नेक्स्ट हॉप आफ्टर लोकल 40 गेट? जी सर, आप लोगों ने मुझे पर्सनल चैट पे जवाब देना है। मैंने इथरनेट 0/0 को शट डाउन कर दिया, so which port should be used for the exit of this the local 40 gate? Port 1 या port 2? सर ओपन नहीं करेंगे सर, आपने इंडिविजुअल पर्सनल डायरेक्ट मैसेज करना है। पाक भाई फौजान बिल्कुल ठीक कह रहे हो, इट शुड बी नाउ पोर्ट 2। सो लेट्स सी दैट एक दफा नेक्स्ट हॉप उसके बाद वो हमें ट्रेस में तो बता रहा है 10.0.1.254 के बाद इट इज समहाउ नॉट रिस्पॉन्डिंग। पिंग भी किया जा सकता है, वी कैन इनिशिएट पिंग एज वेल। वेब सर्वर से अगर मैं पिंग करता हूं, थोड़ा सा ट्रेस ना इस सिमुलेटेड एनवायरनमेंट में गड़बड़ होता है, लेकिन अगर मैं पिंग करता हूं तो पिंग मेरा होना चाहिए। पिंग शुड बी फंक्शनल, पहली चीज तो ये है, माय पिंग शुड बी फंक्शनल। ये गड़बड़ है कि पिंग मेरा somehow it is not working। देखना पड़ेगा अभी कि गलती क्या है, व्हाट्स द नहीं, मैंने पिंग किया नहीं एक्चुअली। ट्रेस राउट करता हूँ, पिंग करता हूँ, कि गेटवे राउटर पे जाके लेट्स सी शो रनिंग सेक्शन आईपी राउट 10.0.10 के लिए 10.200.2.1 10.200.1.1 both of these routes are available। show IP route, आपके पास राउटिंग टेबल में 10.200.2.1 का राउट अवेलेबल है। 10.200.2.1 को अगर आप पिंग करते हैं दैट इज रीचेबल एज वेल, दैट इज ओके। अब हमें एक दफा अपनी कॉन्फ़िगरेशन को दोबारा से वेरीफाई करना पड़ेगा, जो हमने बेसिकली यहाँ पर की है। स्टैटिक राउट की और पॉलिसीज की दोनों को एक दफा चेक करते हैं। लोकल 40 गेट के ऊपर सिस्टम्स में गए थे, यहाँ पे बल्कि नेटवर्क में गए थे, और नेटवर्क में जाकर स्टैटिक राउट्स हमने दो डिफाइन किए थे। वी डिफाइन 2 स्टैटिक राउट्स। देखते हैं इसको, लेट्स चेक दैट। लेट्स चेक both of these routes one by one। This was our first route 10.200.1.254। हाँ अच्छा, एक गलती पोर्ट 1 से, दिस इज ओके, और this is apparently okay as well। 10.200.2.254 एडिट करता हूँ। एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस जो है बिल्कुल ठीक है 20। इंटरफेसेस पोर्ट 2 बिल्कुल ठीक, आउटगोइंग एड्रेस पोर्ट 2 है। गेटवे एड्रेस 10.200.2.254 दिस इज आल्सो ओके, और ऑब्वियसली यहाँ प्रायोरिटी दोनों के केस में 0 है। सो 220 पोर्ट 2। नाउ दिस इज माय बैकअप राउट, दिस इज माय बैकअप राउट। और आप 40 गेट का राउटिंग टेबल पे देखते हैं
Okay, now it should give us the entry, not entry होनी चाहिए. So let's check that. अच्छा मजे की बात है कि हाँ, हाँ, अच्छा अभी यहाँ से ना एक चीज नोटिस करो. क्लास सिचुएशन देख रही है कि समहाउ आपका जो फायरवॉल का राउटिंग टेबल है वो इट हैज नॉट बीन अपडेटेड, राइट? कैन यू गाइस सी दिस? जरा एवरीवन शुड बी अटेंटिव नाउ, राइट? आपको याद होगा मैंने अभी जब टेस्टिंग करने लगा था ना, तो मैंने एक चीज कही थी कि एक जरा देसी तरीके से टेस्टिंग करते हैं. रिमेंबर दैट वर्ड कि यार थोड़ा देसी तरीके से टेस्टिंग करते हैं. अब देखो, लोकल फोर्टिगेट ने अभी तक स्विच ओवर नहीं किया. लोकल फोर्टिगेट हैज नॉट स्विच्ड ओवर द पोर्ट. उसने स्वैप किया ही नहीं है. और यहां पर वो दिस इंटरफेस इज नॉट रीचेबल, राइट? सर आपके पास जो एक कंप्लीट सॉल्यूशन होता है ना इस राउट फेलोवर का, इट इज टू कॉन्फ़िगर द लिंक हेल्थ मॉनिटर्स. आपको ना ये लिंक हेल्थ मॉनिटरिंग एनेबल करनी चाहिए और उसके बाद इसको टेस्ट करना चाहिए. राउट फेलोवर का फुल प्रूफ तरीका यह है कि यू मस्ट कॉन्फ़िगर द लिंक हेल्थ मॉनिटर्स. आप लिंक हेल्थ मॉनिटर्स इस लिंक की हेल्थ को मॉनिटर करें और इस लिंक की हेल्थ को मॉनिटर करें और फिर उसको भी एसोसिएट किया हो आपने अपने इस राउट फेलोवर मैकेनिज्म के साथ. देन द स्विच ओवर वुड बी स्मूथ. क्लास इज गेटिंग माय पॉइंट? यहां पर आप देखो, यू हैव गॉट एन एरेटिक बिहेवियर कि आपने सिंपली हेल्थ मॉनिटर्स एनेबल नहीं किए अपने स्टैटिक राउट्स के साथ और उसने आपको रिजल्ट जो है वो अप्रोप्रिएट और वो कंप्लीट नहीं दिखाया. मींस ये उसने स्विच ओवर ही नहीं किया. राउटिंग टेबल में भी अभी तक पोर्ट 1 की एंट्री आ रही है. इट इज नॉट स्विच्ड ओवर. तो हम करेंगे ये कि हम इन दोनों लिंक्स के साथ, इस लिंक पे भी और इस लिंक पे भी, विल बी एनेबलिंग एंड विल बी एसोसिएटिंग टू लिंक हेल्थ मॉनिटर्स. लिंक हेल्थ मॉनिटर का कॉन्सेप्ट बड़ा सिंपल सा है. यू सेंड प्रोब मैसेजेस. आप कुछ प्रोब्स भिजवाते हो कुछ डेस्टिनेशंस की तरफ और उन प्रोब्स का जवाब आना चाहिए. द मोमेंट यू डोंट गेट द रिस्पॉन्स टू ऑफ दोज प्रोब्स, तो यू कंसिडर दैट पाथ टू बी अनहेल्दी, राइट? और ये हमारा एक नॉर्मल पैटर्न होता है जब हम आईएसपी से कनेक्टिविटी करते हैं. तो एज अ बेस्ट प्रैक्टिस होना क्या चाहिए कि आईएसपी से हम कहें कि यार तुम अपने अपने नेटवर्क के अंदर कोई लूपबैक एड्रेस के साथ मुझे प्रोब अनेबल करवा दो. लड़ाई खत्म हो जाएगी. ठीक है? कि अक्सर आपने देखा होगा इस तरह की सिचुएशन में कि आप कहते हो यार मेरी ट्रैफिक अपलोड नहीं हो रही, डाउनलोड नहीं हो रही, लिंक में प्रॉब्लम है. वो मान नहीं रहा होता, आपका यहाँ से स्विच ओवर हुआ नहीं होता, लिंक में प्रॉब्लम होती है. जैसे इस केस में प्रॉब्लम है, राइट? दिस इंटरफेस इज डाउन, लेकिन फोर्टिगेट ने सेंस नहीं किया. तो इसका तरीका या इसका सोल्यूशन क्या है कि यू मस्ट अनेबल द हेल्थ मॉनिटरिंग ऑन द लिंक्स. ठीक है? और उसका तरीका ये कि आपने इस लिंक के ऊपर से कुछ ट्रैफिक भेजनी है, प्रोबिंग ट्रैफिक किसी डेस्टिनेशन की तरफ. जब तक वो प्रोब्स का जवाब मिलता रहेगा, इस लिंक की हेल्थ इज फाइन. जब लिंक का जवाब मिलना बंद हो जाएगा, द हेल्थ ऑफ द लिंक इज कॉम्प्रोमाइज्ड, राइट? सो हम अब ये करेंगे कि विल बी एसोसिएटिंग टू लिंक हेल्थ मॉनिटर्स विद दिस. उससे पहले what I will do, I will bring my network back to my original status. जो मेरा था गेटवे राउटर के ऊपर इंटरफेस मैंने शट डाउन किया था 0/0, मैं इसको नो शट करूंगा, राइट? और मेरा प्रोटोकॉल अप हुआ फाइन. और उसके बाद अगर मैं पिंग करता हूं तो माय पिंग शुड वर्क, पिंग मेरा काम कर रहा है. अगर मैं ट्रेस राउट करता हूं तो नॉर्मल जो मेरा ट्रेस राउट है इट शुड गो वाया. यार एज अ बेस्ट प्रैक्टिस फौजान लूप बैक्स लें, राइट? आईएसपी आईपीस के साथ नहीं. आईएसपी आईपीस के साथ तो पर्पस हल नहीं होता ना. आपको तो लिंक की हेल्थ देखनी है. उसे कोई यार मुझे तुम्हारे इस कंप्लीट लिंक प्लस तुम्हारा वो पोर्ट जो मुझे सर्व कर रहा है उसके साथ वो चाहिए. तो एज अ बेस्ट प्रैक्टिस हम क्या करते थे वायरलेस टेलीकॉम में कि 3 हमने सर्विस प्रोवाइडर से लिया हुआ था लिंक. 3 डिफरेंट इंटरनेट कनेक्शंस थे जीपीएस डोमेन के लिए. तो उसमें तीनों के जो कोर नेटवर्क थे उनके साथ वी कॉन्फ़िगर्ड द प्रोब्स,
राइट। इस तरह से वर्चुअल आईपीस के ऊपर, और उसे आप बड़ी आसानी से आइडेंटिफाई कर लेते हो। गॉट द पॉइंट। दैट इज वेरी अच्छा, बड़ी जबरदस्त प्रैक्टिस है, इसमें किसी किस्म का डाउट नहीं रहता। ओके, और फेल ओवर बड़ा, स्विच ओवर बड़ा स्मूथ हो जाता है। अभी देखना, ये यही वाली लैब ना, यहीं पे आप उसको अनअवेलेबल करोगे तो खुद ब खुद ये वेरी स्मूथली इट विल स्विच ओवर। पहले जरा इसको कंप्लीट कर लेते हैं, फिर मैं तुम्हारे ये वीलन वाले आंसर का वो करूंगा, पॉइंट दूंगा, जवाब दूंगा भी नहीं, ठीक है, फिर क्लास डाइवर्ट हो जाएगी। ठीक है, पहले पहले जरा इसको करते हैं ना, लिंक हेल्थ मॉनिटर्स कॉन्फ़िगर करते हैं, फेलोवर कराते हैं, फेलोवर सक्सेसफुल कराते हैं, उसके बाद देन आई विल आंसर टू योर क्वेश्चन जो आपने भी अभी पूछा। अच्छा जी सर, अभी मेरा नॉर्मल हालात हैं, दोनों लिंक्स एक्टिव हैं, मुझे पता है यार ये मेरा प्राइमरी है, ये मेरा सेकेंडरी है, राइट। अच्छा, मैं अब ये करूंगा कि आई वुड बी कॉन्फ़िगरिंग द प्रोब्स, हेल्थ प्रोब्स कॉन्फ़िगर करूंगा। कैसे करते हैं, वी विल सी दैट। और क्लास एक पॉइंट नोट कर ले कि हमारा फेल ओवर नहीं चला, फेल ओवर काम नहीं किया, टेस्ट नहीं किया उसने सक्सेसफुली, राइट। ठीक है ना, टेस्ट नहीं किया। और मैंने अभी ये काम क्यों किया कि नॉर्मल जब मैं क्लास में करवाता हूँ ना FortiGate की, तो अक्सर स्टूडेंट कहते हैं सर ये तो टेस्टिंग हम लिंक डाउन करके भी कर सकते हैं। आप देख लो, आपने लिंक डाउन किया है, डिड इट वर्क? मैंने चक्कर सिर्फ ये किया, मैंने ये वाला पोर्ट नहीं डाउन किया। यू गॉट द पॉइंट। मैंने ये फ्रंट एंड वाला किया, ये वाला किया, राइट। इसने डिटेक्ट नहीं किया FortiGate ने, राइट। अच्छा, अभी यार एक काम हम करेंगे, हमारे वेब सर्वर के ऊपर, नॉट वेब सर्वर, गेटवे राउटर के ऊपर इस वक्त एक लूप बैक है। लेट मी डिफाइन अनदर लूप बैक। एक और लूप बैक डिफाइन करता हूं, 22 वाला। और पर्पस बड़ा सादा सा है कि आई कैन एसोसिएट वन प्रोब विद 11 एंड आई कैन एसोसिएट सेकंड प्रोब विद 22। दो प्रोब्स कॉन्फ़िगर करूंगा, एक इसके लिए, एक इसके लिए। एक एसोसिएट कर दूंगा 11 के लिए, दूसरा कर दूंगा 22 के साथ, राइट। सो लेट मी गो टू माय लोकल FortiGate, और यहां जाके मुझे बेसिकली प्रोबिंग एनेबल करनी है, कॉन्फ़िगर करनी है। इनफैक्ट लिंक मॉनिटरिंग, लिंक हेल्थ मॉनिटरिंग कैसे करते हैं सर? उसमें आपके पास ऑप्शन है, यू हैव टू गो टू कॉन्फ़िग सिस्टम लिंक मॉनिटर और एडिट पोर्ट 1 मॉनिटर। आपने ये जो एडिट पोर्ट 1 मॉनिटर है, मॉनिटर एडिट पोर्ट 1 मॉनिटर इज अ लेबल, इट कैन बी एनी लेबल, मैंने उसको नाम दे दिया पोर्ट 1 मॉनिटर का। आपको सर इसमें सेट करना पड़ता है सोर्स इंटरफेस। आप कहते हो माय सोर्स इंटरफेस इज पोर्ट 1। आप कहते हो सेट सर्वर। अब ये सेट सर्वर जो है ना, ये डेस्टिनेशन है कि किस किस आईपी को पिंग करना है। मैं कहता हूँ यार पोर्ट 1 वाला जो साइड है ना, इट्स बीइंग ओन्ड बाय 11 का सर्वर पड़ा हुआ है एक गेटवे राउटर के ऊपर। तो डेस्टिनेशन मैं इसके लिए कर सकता हूँ। मल्टीपल सर्वर्स की डेस्टिनेशन रिकमेंडेड है, नॉट सिंगल, 2 3। भाई सर्वर भी डाउन हो सकता है, लिंक ठीक हो तो व्हाट इफ, तो फिर आपकी वो जो लिंक मॉनिटरिंग है, इट विल बिकम फुल प्रूफ। तो इट सपोर्ट्स एडिशन ऑफ मल्टीपल सर्वर्स। आप एक और सेट सर्वर करके एंट्री करें तो इट विल एंटर द सेकंड सर्वर एज वेल। सर सेट गेटवे आईपी 10.200.1.254, सेट प्रोटोकॉल पिंग, और एक आप करोगे, एक और कमांड दोगे, सेट अपडेट स्टैटिक राउट अनेबल। से बहुत इंपॉर्टेंट कमांड है, इसके बगैर स्विच ओवर नहीं होगा। सेट अपडेट स्टैटिक राउट अनेबल, राइट। अब अगर आपकी प्रोब मिस करती है ना, तो ये इस कमांड की वजह से आपकी राउटिंग जो है वो स्विच ओवर होगी पोर्ट 1 से 2 की तरफ, राइट। अब देखो व्हाट वी हैव डन ओवर हियर इन दिस प्रोब। मैंने एक लिंक मॉनिटर कॉन्फ़िगर किया, उसको नाम दिया पोर्ट 1 मॉनिटर का। मैंने कहा सोर्स इंटरफेस होगा मेरा पोर्ट नंबर 1, डेस्टिनेशन होगा 1111 which I know is a loopback address on the gateway router। गेटवे आईपी मैं बता रहा हूं 10.200.1.254। प्रोटोकॉल मैं सेट कर रहा हूं पिंग, यानी पिंग बेस्ड प्रोब्स, अपडेट स्टैटिक राउट अनेबल, यानी कह रहा हूं कि जब अगर ये पिंग सक्सेसफुल नहीं होता तो फिर स्टैटिक राउट एंट्री अपडेट करो, राइट। ओके सर, दूसरी प्रोब करता हूं कॉन्फ़िगर। नेक्स्ट करके भी कर सकते हैं, बाहर निकल के भी कर सकते हैं। मैं कहता हूं नेक्स्ट एडिट पोर्ट 2 मॉनिटर। सर पोर्ट नंबर 2 के लिए एक मॉनिटर कॉन्फ़िगर कर रहा हूं, और मैं कहता हूं सेट सोर्स इंटरफेस पोर्ट नंबर 2,
सेट सर्वर, भाई अब की बार वो 22 वाला सर्वर मैं पोर्ट 2 के साथ बाइंड कर रहा हूँ, और सेट गेटवे आईपी वुड बी 10.200.2.254, और सेट प्रोटोकॉल इज पिंग, और सेट अपडेट स्टैटिक राउट अनेबल। सर मैंने 2 प्रोब्स कॉन्फ़िगर कर लिया, आई कॉन्फ़िगर 2 प्रोब्स, राइट, और मैं इनका स्टेटस भी चेक कर सकता हूँ। आई कैन गिव कमांड शो सिस्टम लिंक मॉनिटर, शो सिस्टम लिंक मॉनिटर से यू गाइस कैन सी दैट आई हैव गॉट 2 प्रोब्स, एक पोर्ट 1 के लिए, दूसरी पोर्ट 2 के लिए। पोर्ट 1 की जो है प्रोब वो 11 वाले सर्वर की तरफ जा रही है, पोर्ट 2 वाली जो प्रोब है वो 22 वाले को एम कर रही है, राइट। ओके, अब हम ऐसा करते हैं सर कि नाउ लेट्स डू द वेरिफिकेशन, राइट, और वेरिफिकेशन में एक दफा नॉर्मल पिंग इनिशिएट करते हैं टू सम डेस्टिनेशन। अच्छा, मैं डेस्टिनेशन में ना भी एक काम करूंगा कि लेट मी मेक अनदर डेस्टिनेशन गेटवे राउटर पे ना एक और लूप बैक डिफाइन करता हूँ, इंटरफेस लूप बैक टू, उस पे आईपी देता हूँ 33333। इसको मैं इस्तेमाल करूंगा एज डेस्टिनेशन, प्रो वाले को नहीं यूज करूंगा। 33 इज अ थर्ड लूप बैक ऑन माय गेटवे राउटर। भाई 3 लूप बैक्स डिफाइन कर दिए यार, स्टैटिक राउट्स का आर्किटेक्चर है तो ऑब्वियसली रीचेबल होगा ना यहाँ से इंटरनल साइड से। सो लेट मी गेट बैक टू माय वेब सर्वर अगेन, और पिंग इसको करते हैं 33333 को। ओके, पिंग इज सक्सेसफुल, ट्रेस मारते हैं सर 33333 को। ओके, एज एक्सपेक्टेड ट्रैफिक यहां से गई। सर अब फेलियर सिनेरियो जनरेट करते हैं। पहले फेलियर सिनेरियो जनरेट करते हैं लूप बैक 1 को अनरीचेबल बना के, ए शट डाउन, लूप बैक 1 डाउन सर, लूप बैक 1 डाउन, लोकल FortiGate पे आते हैं, गेट राउटर राउटिंग टेबल ऑल। तो मुझे बताएं ट्रैफिक शिफ्ट कर गई सर सेकंड के ऊपर, क्लास कंफर्म करती सर, पोर्ट 2 पे चलेगी सर? जी प्लीज कंफर्म करें यार। जी सर, और बड़े क्विकली गई है, यू हैव सीन दैट सर, आपका फिल ओवर हो गया है, पोर्ट 2 पे ट्रैफिक हैज बीन शिफ्टेड। और अब अगर आप वेब सर्वर से पिंग करते हैं 33 की डेस्टिनेशन को, पिंग हुआ कोई प्रॉब्लम नहीं, ट्रेस लेते हैं, ट्रेस कहां से जाएगी, किस ऑप से जाएगी? इट शुड फॉलो पोर्ट नंबर 2 सर, पोर्ट नंबर 2 से जानी चाहिए यहां से। सर बड़ी इंटरेस्टिंग लैब है और ये बड़ी प्रैक्टिकल लैब है, राइट, छोटे से सेटअप के ऊपर इट्स वेरी प्रैक्टिकल लैब। 10.0.1.2.5.4 पोर्ट 3 फर्स्ट गेटवे, और जो सेकंड गेटवे है इट शुड बी 10.200.2.2.5.4, हियर इट इज 10.200.2.2.5.4। और इसको आप GUI में भी देख सकते हैं, यू कैन सी दिस ऑन द GUI। वही लॉग एंड ट्रैफिक में जाते हो, और लॉग एंड ट्रैफिक में अब आपको सेकेंडरी जो पॉलिसी है, जो सेकेंड पॉलिसी है, उसके थ्रू ट्रैफिक नजर आनी चाहिए जाते हुए, राइट। सो लेट मी चेक दैट। मैं लॉग्स एंड रिपोर्ट में जाता हूं, और फॉरवर्ड ट्रैफिक जो है, कैन यू प्लीज सी दिस ओवर हियर। पहले आपकी ट्रैफिक कहां से जा रही थी, पहले कमांड्स प्राइमरी इंटरनेट एक्सेस है, नाउ इट्स गोइंग वाया बैकअप इंटरफेस। सर क्लास इज विद मी, क्लास मेरे साथ है। मैं यहाँ पर इंटरफेस भी ऐड कर सकता हूँ, आई वांट टू ऐड बैकअप इंटरफेस, तो मेरे पास कॉलम है डेस्टिनेशन इंटरफेस, पर नॉट बैकअप, डेस्टिनेशन इंटरफेस। ये डेस्टिनेशन इंटरफेस का कॉलम मैं ऐड कर लेता हूँ। लेट मी सेलेक्ट दिस। आप किसी भी इसके ऊपर कर्सर रखते हैं ना, ऑन एनी ऑफ दी सेल्स, जो आपको ऑप्शन देता है डेस्टिनेशन इंटरफेस था मेरा, हाँ देखो ना। सर कैन यू प्लीज सी द डेस्टिनेशन इंटरफेस नाउ। सर किस पोर्ट से ट्रैफिक गई है? इट्स पोर्ट नंबर 2, राइट।
सर अगर मैं इंटरफेस को दोबारा अप करूं गेटवे राउटर के ऊपर, अगर मैं इस लूप बैक को अप करूं, नो शट करूं, तो माय पोर्ट 1 शुड बी रिकवर्ड ना। प्राइमरी रास्ता, प्राइमरी वो 10 है ना उसका एडी, तो अब ये इस राउट को एक्टिव होना चाहिए, राइट। तो उसी तरह से पहले आप टेबल चेक करें। सर देखें क्या आपका पोर्ट 1 रिकवर कर गया टेबल के अंदर? बिल्कुल कर गया। और आप वेब सर्वर पे जाएं और पहले पिंग कर लें, पिंग इज सक्सेसफुल, ट्रेस करें, नाउ ट्रेस शुड फॉलो दिस राउट, ये वाला रास्ता। और ये पिंग भी अगर आप चेक करते हैं तो आप, अब तो क्योंकि हमारे पास इसका है ना इंटरफेस का ऑप्शन है यहाँ पर, अगर मैं लॉग्स को रिफ्रेश करता हूँ यहाँ पे, तो यू गाइस कैन सी दैट नाउ द ट्रैफिक इज गोइंग वाया पोर्ट नंबर 1 अगेन, क्योंकि मेरा जो प्रोबिंग के पैरामीटर्स हैं, जो जिस जिस इंटरफेस को मैं प्रोब कर रहा था, दैट इज अप नाउ। ओके, यू कैन सी 10 200 1.254 ऐसा करते हैं। वो मैंने तो उसकी तो रिकवरी कर ली ना। बाय द वे, ये जो मैंने प्रोब्स डिफाइन किए हैं, आप क्या समझते हो कि इन इन प्रोब्स में ये कैपेबिलिटी है कि अगर ये इंटरफेस फेलियर हो, ये वाला 10 200 1254, क्या ये प्रोब्स उसको भी डिटेक्ट कर सकती हैं? अभी तो है ना, मैंने यहाँ पे जो डेस्टिनेशन सर्वर था उसी को डाउन कर दिया ना। तो व्हाट इफ कि अगर मैं इस इंटरफेस को डाउन करूं, जस्ट हैव अ लुक एट दीस प्रोब्स, लिंक हेल्थ मॉनिटर्स, क्या इनमें ये कैपेबिलिटी है कि ये इस इंटरफेस को डिटेक्ट कर सके? क्लास मेरा पॉइंट समझिए कि भाई अभी जो मैंने टेस्टिंग की वो डेस्टिनेशन सर्वर को अनरीचेबल बना के था ना। तो व्हाट इफ के डेस्टिनेशन सर्वर मेरा अप है, लेकिन ये जो इंटरफेस ईथरनेट 0/0 है गेटवे राउटर का, अगर मैं इसको डाउन कर दूं, इंटरफेस ईथरनेट 0/0 को अगर शट डाउन करूं, तो क्या मेरी इस प्रोब के अंदर ये कैपेबिलिटी है कि वो इस इंटरफेस फेलियर को भी डिटेक्ट करेगा? यस और नो? यस, बिल्कुल करेगा, क्योंकि आप देखें, इसीलिए तो आपने स्पेसिफिकली बताया था कि यार ये सोर्स इंटरफेस और ये गेटवे, तो अगर गेटवे अनरीचेबल होगा तो डेफिनेटली तब भी वो लिंक की हेल्थ मॉनिटरिंग कंप्रोमाइज हो जाएगी ना। यू आर गेटिंग द पॉइंट? फॉर एग्जांपल, अगर मैं इसको शट करता हूं, नाउ आई हैव नॉट शट डाउन द डेस्टिनेशन, याद रखिए वो डेस्टिनेशन मुझे दूसरे रास्ते से अवेलेबल है, लेकिन ये लिंक हेल्थ मॉनिटर प्रो फेलियर होगा। व्हाई? बिकॉज ये पैरामीटर दिस विल नॉट मीट गेटवे एड्रेस, हमने कहा था ये वाला हो फ्रॉम दिस पोर्ट टू दिस डेस्टिनेशन सर्वर। आप रिजल्ट देखो कि यहां पर अगर मैं इस वक्त राउटिंग टेबल चेक करता हूं, कैन यू गाइस सी कि ट्रैफिक हैज शिफ्टेड टू द पोर्ट नंबर 2, नाउ द एंट्री इज देयर, पोर्ट नंबर 2 की एंट्री है। मैं वेब सर्वर पे जाता हूं, पिंग करता हूं, पिंग इज वर्किंग, ट्रेस लेता हूं और ट्रेस मेरा फॉलो करेगा पोर्ट नंबर 2 को। Here it is, you can see it's port number 2 which is now working। और ऑब्वियसली मैं जाकर इसको अगर रिफ्रेश करता हूं अपने लॉग्स को GUI के अंदर, यू गाइस कैन सी कि नाउ इट इज यूजिंग बेसिकली पोर्ट नंबर 2, पोर्ट नंबर 2 इस्तेमाल कर रहा है डेस्टिनेशन इंटरफेस के तौर पे, right? So guys, this is significance of the probes which are available to us for the configuration, right? So far so good, sir। क्लास मेरे साथ है? Okay। So let's configure our last requirement, equal cost multipathing and policy routing। और पहले जरा आपको ये, इनफैक्ट ये इक्वल कॉस्ट मल्टीपाथिंग है, ये बिहेवियर इज अ डिफरेंट बिहेवियर, इसको हम अलग अलग एक्सरसाइज के तौर पे ट्रीट कर सकते हैं।
और ये जो है दिस विल एक्ट एज अ सेपरेट एक्टिविटी. जो पॉलिसी बेस्ड राउटिंग है, वी कैन से वी कैन ट्रीट दिस एज अ सेपरेट एक्टिविटी. सो इक्वल कॉस्ट मल्टीपैथिंग, इसको ऑब्जर्व करना. वी हैव टू बेसिकली ऑब्जर्व द बिहेवियर ऑफ ईसीएमपी के हाउ द इक्वल कॉस्ट मल्टीपैथिंग इज देयर. और फिर हम पॉलिसी राउटिंग देखेंगे इसी सेटअप के अंदर, राइट. So basically we have started from a basic lab of routing और फिर थोड़ा सा हम उसके अंदर एड अपॉन करते गए चीजों को, राइट. और फाइनली हम बेसिकली पॉलिसी राउटिंग को we will see that how this policy routing is there. So now our target would be to see the equal cost multipathing behavior. Okay, break करनी sir. Okay, you can do that. Sir, doesn't these probe generate any message of primary path down? Probe generating message of primary pathing down. मैं फौजान का ही आंसर दे दूं, उसके बाद फिर वी कैन ऑलवेज हैव अ ब्रेक. ठीक है, 2 मिनट लगेंगे इस आंसर करने में. फौजान एक्चुअली अगर आप देखो ना तो ये कॉन्सेप्ट ना जो हम यहाँ कर रहे हैं, यही लिंक हेल्थ प्रोब्स आप एसोसिएट करोगे एसडी वैन के साथ भी. यही कॉन्सेप्ट जो है ना, जब हम इंशाल्लाह एसडी वैन का मॉड्यूल पढ़ेंगे ना इसमें फोर्टिनेट में, तो यू विल सी कि यही प्रोबिक्स ना थोड़ी सी एक्सटेंड हो जाएंगी. And these link health monitors, these would be embedded in the concept of SD-WAN. तो वहां पर फिर आपके पास जो है वो मैसेज जनरेट करने की ऑप्शन आ जाएगी. यू गॉट माय पॉइंट? बात समझ आ गई? ओके गाइस, वी कैन हैव ब्रेक. 10 मिनट्स की ब्रेक कर लेते हैं और ब्रेक के बाद वी कैन कंटिन्यू अगेन. आई होप थिंग्स आर मेकिंग सेंस टू यू. आई एम ट्राइंग टू बी एज स्लो और बिल्कुल एक तरह से बेस लाइन से लेके चल रहा हूँ. तो जरा प्लीज मुझे कंफर्म कर दें आप लोगों को समझ आ रही है. आई कैन सी देयर आर फ्यू पीपल हु हैव जॉइंड टुडे. जैसे आज किसने ज्वाइन किया है? उस्मान, आप लास्ट सेशन में थे? उस्मान नहीं थे. ख्वाजा, यू आर नॉट देयर इन लास्ट सेशन, राइट? और उस्मान, ख्वाजा, they are quite. Shavez, you are absolutely quite. You are not participating. Abdullah Mir, you are quite. आप पार्टिसिपेट नहीं कर रहे. आई होप थिंग्स आर मेकिंग सेंस. साथ हो, प्रॉब्लम तो नहीं है? नहीं, लेसन तो आप सुन रहे हो मुझे पता है, लेकिन समझ भी आ रही है? कोई प्रॉब्लम नहीं है, चलो ठीक हो गया. तो गाइस लेट्स हैव ब्रेक फॉर 10 मिनट्स और फिर उसके बाद ही कंटिन्यू करते हैं इसको इक्वल कॉस्ट मल्टीपाथिंग वाले बिहेवियर को, राइट. थैंक यू.
So guys, I'm back. Please confirm presence. अच्छा, एक क्वेश्चन था बिफोर ब्रेक। गलबन फौजान ने किया था या रेहान ने किया था, इन दोनों में से किसी ने किया था कि हम स्टैटिक और राउटिंग टेबल कैसे देख सकते हैं जीयूआई से। मैंने आपको बताया था कि यार जो पुराने वर्जन हैं उनमें आपके पास मॉनिटर का टैब होता था बिल्ट इन, और राउटिंग मॉनिटर में जाके यू गाइस कैन सी दी राउटिंग टेबल। यहाँ पर जो 6.4 है इसमें आप देख सकते हो राउटिंग टेबल, बट यू हैव टू ऐड दैट एज अ विजेट। ये ऑप्शन आपके पास डैशबोर्ड में है। डैशबोर्ड में आप जाते हो, आप एक्सपैंड करते हो उसको, यहाँ पे देखो आपके पास नेटवर्क की ऑप्शन है। डैशबोर्ड में यू हैव ऑप्शन फॉर नेटवर्क, और नेटवर्क में वो बाय डिफॉल्ट आपको कुछ विजेट्स दिखा रहा है। डीएससीपी, एसडी वैन, आईपी सेक, एसएसएल वीपीएन। और यहाँ से आप व्हाट यू कैन डू, यू कैन ऑलवेज ऐड अ विजेट। ये आपके पास ऐड विजेट की ऑप्शन है। और अगर आप इसको स्क्रॉल डाउन करते हो तो ओवर हेयर यू हैव डिफरेंट ऑप्शंस लाइक मॉनिटर है, ठीक है, और नेटवर्क है। और नेटवर्क के अंदर इफ यू वांट टू बेसिकली व्यू दैट, तो मैंने बेसिकली यहाँ से ये राउटिंग का ये विजेट ऐड किया, स्टैटिक एंड डायनामिक राउटिंग। अगर पॉलिसी बेस्ड राउटिंग करनी है तो मैं उसका विजेट भी ऐड कर सकता हूँ, राइट। तो स्टैटिक डायनामिक का आई कैन ऐड द विजेट, और यू कैन सी राउटिंग एडेड सक्सेसफुली। इसी तरह से अगर मैं कोई भी विजेट यहाँ से ऐड करना चाहता हूँ तो आई कैन ऑलवेज ऐड दैट विजेट फ्रॉम हेयर, राइट। मैं क्लोज करता हूँ। अब मैं आपको विजेट दिखाता हूँ वहां पे। अब एडेड द विजेट ओवर हेयर, तो यहाँ पे मुझे स्टैटिक एंड डायनामिक राउटिंग का यू गाइस कैन सी दैट विजेट इज देयर। मैं इस पर डबल क्लिक करता हूँ। सो हियर इट इज, दिस इज योर राउटिंग टेबल। ये आपका राउटिंग टेबल है। कैन यू गाइस सी दिस? इंटरफेसेस की डिटेल, राउट लुकअप करना है। आई होप क्लास इज विद मी ऑन दिस। ओके फाइन। सो इसी तरह आप देखना कि यहाँ पर यू विल फाइंड लॉट्स ऑफ विजेट्स। वो आपको बनाने नहीं पड़ते, ऑलरेडी दे आर अवेलेबल। लेकिन जिस तरह मैंने आपसे कहा था ना, उनकी विजिबिलिटी थोड़ी सी इंप्रूव इन्होंने की है, बिकॉज एज पर देयर ओपिनियन के ऑन नीड बेसिस आप चीजों को जीयूआई के अंदर विजिबल करा सकते हो, राइट। सो दैट इज बेसिकली देयर थीम। अगर पॉलिसी बेस्ड राउटिंग आपने देखनी है तो यू कैन सी ओवर हेयर। स्टैटिक और डायनामिक राउटिंग की डिटेल आपको यहाँ दिखाता है। And you can see over here there's one static route which is pointing towards going out from port 2, and it's statically defined. Okay, now guys, let's get back to our original requirement जो हम discussion कर रहे थे routing के हवाले से। Let's continue with the exercises. एक exercise थी जो मैंने कहा था कि हम करेंगे, it's related to the configuration of equal cost multipath routing on FortiGate। और ये जो इक्वल कॉस्ट मल्टीपाथ राउटिंग है ये हम अनेबल करेंगे ऑन लोकल FortiGate टू बैलेंस द इंटरनेट ट्रैफिक बिटवीन पोर्ट 1 एंड पोर्ट 2। पोर्ट 1 और पोर्ट 2 के दरमियान इक्वल कॉस्ट मल्टीपाथ थिंग को विल बी अनेबलिंग दैट टू बैलेंस द इंटरनेट ट्रैफिक बिटवीन पोर्ट 1 एंड पोर्ट 2। आप अभी नोटिस करो कि इस वक्त व्हाट्स द स्टेटस राइट नाउ। अगर मैं अपने लोकल FortiGate पे जाता हूं और गेट राउटर info routing table all करता हूं, you guys can see that right now port 2 is enabled because gateway router पे most likely मैंने interface को disable किया हुआ है। Let me just check show IP interface brief, yes that is administratively down। मैं इसको recover करता हूं
ताकि इट शुड बी माय नॉर्मल, वो नॉर्मल मेरा हो जाए। और दोबारा से लोकल FortiGate पे आता हूँ और यहाँ पर यू कैन सी नाउ इट्स वाया पोर्ट 1। और अगर मैंने कंप्लीट देखना है तो यू कैन सी पोर्ट 1 और पोर्ट 2 दोनों हैं। और पोर्ट 2 का बैकअप होने की वजह एडी वैल्यू थी। सर व्हाट इफ कि अगर मैं एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस वैल्यू जो है सेकंड स्टैटिक राउट की उसको भी 10 कर दूं। लेट मी एडिट दिस। और जो आपको ये एडी वैल्यू 20 नजर आ रही, आई कैन मेक इट 10। नाउ बोथ द एडी वैल्यूज ऑफ बोथ द स्टैटिक राउट्स इज सेम। और उसका मुझे इम्पैक्ट बेसिकली यहां पर CLI में नजर आएगा कि अब अगर मैं अपना राउटिंग टेबल देखूंगा तो you will find that it's being load balanced. Now this is what is equal cost multipathing. ये आपकी equal cost multipathing है। This is your equal cost multipathing कि आपकी attributes बराबर है और load would be balanced, load would be distributed on both of these lengths. Equal cost multipathing के हवाले से एक बात याद रखिएगा कि आपके पास basically चार methods हैं equal cost multipathing के in FortiGate। और वो चार मेथड्स कौन से हैं उनको एक दफा देख लेते हैं। लेट्स सी दोस फोर मेथड्स। आपके पास दीज आर दोस फोर मेथड्स व्हिच आर अवेलेबल। यू हैव सोर्स आईपी बेस्ड इक्वल कॉस्ट मल्टीपैथिंग व्हिच इज डिफॉल्ट। यू हैव सोर्स डेस्टिनेशन आईपी बेस्ड, यू हैव वेटेड एंड यू हैव यूजेज। ये चार तरीकों से इक्वल कॉस्ट मल्टीपैथिंग सपोर्टेड है FortiGate के अंदर। सोर्स आईपी का मतलब क्या है? सोर्स आईपी का मतलब यह है कि एक सोर्स एड्रेस से जो भी ट्रैफिक आ रही है वो हमेशा एक लिंक को यूज करेगी। जो इक्वल कॉस्ट मल्टीपैथिंग है उसमें द फर्स्ट मेथड इज सोर्स आईपी बेस्ड इक्वल कॉस्ट मल्टीपैथिंग। यानी सेशंस फ्रॉम सेम सोर्स आईपी विल ऑलवेज फॉलो द सेम लिंक, एक ही रूट इस्तेमाल करेंगे एंड दिस इज डिफॉल्ट। मैं कुछ नहीं करता, जिस तरह अभी मैं इस वक्त हूं, तो व्हाट विल हैपन कि सेशंस फ्रॉम सेम सोर्स आईपी दे विल ऑलवेज फॉलो द सेम रूट। दूसरा जो ECMP का मेथड है, इट इज सोर्स डेस्टिनेशन आईपी। मतलब ये है कि कॉम्बिनेशन एक सोर्स से एक डेस्टिनेशन तक, एक स्पेसिफिक सोर्स से एक खास डेस्टिनेशन तक, दैट कॉम्बिनेशन विल फॉलो द सेम रूट। मतलब ये हुआ कि फॉर एग्जांपल अगर मैं कहता हूं कि जी सोर्स इज A और डेस्टिनेशन इज B, तो दिस इज इट विल फॉलो वन रूट। If source is A and destination is C, so it will follow another route because now it's a combination of source and destination. A और B का combination एक ही link इस्तेमाल करेगा। Let's say port 1 अगर वो choose करता है तो all the traffic between A and B will always follow port 1. और इस तरह से all the traffic between port A and C, let's say वो port 3 choose करता है तो A से C का combination will always follow port 3, right? अब इसी तरह से आपके पास वेटेड है। वेटेड का मतलब ये है कि यू कैन असाइन डिफरेंट वेट्स टू योर इंटरफेसेस और उसकी बिना पर यार अगर फॉर एग्जांपल मैं एक इंटरफेस को वेट 2 देता हूं, दूसरे को 1 देता हूं, तो इट विल द पोर्ट विद वेट ऑफ 2 विल कैरी 2 टाइम्स द ट्रैफिक, राइट? और इसी तरह से एक आखिरी तरीका है जिसको हम बोलते हैं यूजेज बेस, इसको स्पिल ओवर कहते हैं। We can define thresholds, spillover thresholds on each interface और उस पे जब हम कॉन्फ़िगरेशन कर लेते हैं तो जब तक आपका वॉल्यूम वो थ्रेशोल्ड रीच नहीं होता उस वक्त तक यू फॉलो द सेम रूट, और जब वो थ्रेशोल्ड रीच हो जाता है आफ्टर दैट द नेक्स्ट रूट इज यूज्ड। सो ये चार तरीके हैं इक्वल कॉस्ट मल्टीपैथिंग के which are available with us in FortiGate: source IP based, source destination IP, weighted and usage based। और मैंने आपसे कहा कि by default it is basically the source IP base। source IP base is the default method of equal cost multipathing। तो हम ऐसा करते हैं कि let's get back to our setup again। और जो हमारा सेटअप है उसके ऊपर what we will do कि we will try to see the behavior of equal cost multipathing और उसके बाद उसको चेंज भी करेंगे। फॉर एग्जांपल कॉन्फ़िगर इक्वल कॉस्ट मल्टीपैथ राउटिंग ऑन लोकल FortiGate टू बैलेंस द इंटरनेट ट्रैफिक। भाई मैंने
पैरामीटर्स बराबर कर दिए हैं, मैंने दोनों का एडी वैल्यू जो है वो बराबर कर दी, इक्वल कर दिए. सो व्हाट शुड हैपन नाउ एंड व्हाट इज हैपनिंग नाउ कि यू कैन सी ओवर हियर कि इट्स नाउ दी लोड बैलेंस व्हिच इज बीइंग डन ओवर हियर. लेकिन मुझे पता है कि बाय डिफॉल्ट इट्स सोर्स बेस्ड, सोर्स आईपी बेस्ड. एक सोर्स की जितनी भी ट्रैफिक होगी इररिस्पेक्टिव ऑफ द डेस्टिनेशन, अगर मैं फॉर एग्जांपल सर्वर अपने इस वेब सर्वर से ट्रैफिक भेज रहा हूं, तो वो वेब सर्वर से जिस डेस्टिनेशन के को भी ट्रैफिक भेजूंगा, इट विल ऑलवेज फॉलो द सेम पाथ, वो एक ही आउटगोइंग लिंक इस्तेमाल करेगा. इसको मैं चेक कर सकता हूँ, आई कैन चेक दिस. फॉर एग्जांपल इस तरह चेक होता है कि अगर मैं अपनी गेटवे राउटर पे एक काम करूं कि VTY लाइंस के ऊपर, लेट मी एनेबल द VTY लाइंस. राइट नाउ यू कैन सी इट्स नन. तो मैं ऐसा करता हूँ, लाइन VTY 0 to 4, पासवर्ड जो है फॉरवर्ड, लॉगिन और ट्रांसपोर्ट इनपुट ऑल कर लेते हैं, और IP HTTP सर्विसेज एनेबल कर लेता हूँ. मैंने जस्ट एनेबल द HTTP सर्विसेज ऑन माय गेटवे राउटर. रिमेंबर एट पोर्ट 1 पोर्ट 2 के ऊपर दोनों पे पॉलिसीज आपकी लगी हुई हैं, और वो थ्रेशोल्ड्स कॉन्फ़िगर्ड है, लेकिन दोनों का एडी वैल्यू बराबर है. और गेटवे राउटर के ऊपर एक दफा जरा लूप बैक्स का भी स्टेटस देख लेते हैं. लेट्स चेक द स्टेटस ऑफ द लूप बैक्स. एक और लूप बैक क्रिएट कर लेते हैं, लूप बैक 3, उसको दे देते हैं 44444. और मैं बेसिकली लूप बैक 2 और 3 इस्तेमाल करूंगा, 33 वाला और 44 वाला फॉर माय वेरिफिकेशन. ये दो इस्तेमाल कर लेंगे क्योंकि ये दो आपने बाइंड किए हुए बेसिकली अपने प्रोब्स के साथ ना. तो वापस आता हूँ वेब सर्वर पे, और वेब सर्वर पे आके मैं इसको इस तरह चेक कर सकता हूँ कि I can enable packet sniffing on my local FortiGate CLI. मैं पैकेट स्निफिंग एनेबल कर सकता हूँ. पैकेट स्निफिंग क्या होती है? I can enable sniffing of port 80. मैं port 80 की ट्रैफिक की स्निफिंग एनेबल कर सकता हूँ. डायग्नोज स्निफर पैकेट एनी, और जो स्क्रिप्ट मुझे जिसके लिए लिखना पड़ेगा, इट इज TCP पोर्ट 13 वैल्यू 13 and 2 equals 2 and port 84. डायग्नोज स्निफर पैकेट TCP का पोर्ट 80 स्निफ करो. मैं एंटर करता हूँ. सर मैंने पोर्ट 80 का स्निफर लगा दिया अपने इस लोकल FortiGate के ऊपर. राइट, अब मैं ऐसा करता हूँ कि वेब सर्वर पे जाता हूँ और मैं ट्रैफिक करता हूँ पोर्ट 80 की जनरेट. टेलनेट 33333 over port 80. Now it's one of the very easiest way of generating port 80 traffic. टेलनेट करता हूँ 3333 को पोर्ट 80 पे. मुझे पता है टेलनेट जो है वो 33 वाला इंटरफेस मेरा इस गेटवे राउटर पे है, लूपबैक है. मैं ट्रैफिक इनिशिएट करता हूँ. अब देखो मेरा पोर्ट ओपन हो गया. पोर्ट ओपन का मतलब है ट्रैफिक गुजरी है. मैं अपने लोकल FortiGate पे आता हूँ. क्लास मुझे कंफर्म करती है मेरे पास स्निफर ने क्या पकड़ा. उसने पकड़ा कि देयर वाज अ ट्रैफिक ऑफ पोर्ट 80 जो कहां से आई, 10.0.1.20 से. वो ये वेब सर्वर का ये वाला IP था, रैंडम पोर्ट नंबर था उसके साथ, और डेस्टिनेशन क्या था 33 सर्वर हम सिमुलेट कर रहे थे पोर्ट 80 पे. सर उसने पोर्ट 2 को चूज किया है. इट हैज चोजन पोर्ट 2 टू एग्जिट. पोर्ट 3 से आई है, पोर्ट 2 पे गई है. राइट सर, मैं दोबारा से आता हूं. आई कैन गेट बैक टू माय वेब सर्वर अगेन. थोड़ा सा टाइम लगता है इसको निकलने में, एग्जिट होते. सो लेट्स वेट फॉर दैट टाइम. कनेक्शन निकल गया, एग्जिट हो गया. सर मैं टेलनेट करता हूँ 4444 पे पोर्ट 80 के ऊपर. क्लास मुझे बताती है अगर मैं एंटर करता हूँ और मेरा पोर्ट ओपन हुआ है तो ये ट्रैफिक किस पोर्ट को यूज करेगी. रिमेंबर इक्वल कॉस्ट मल्टीपैथिंग एनेबल्ड है, और मुझे लोकल FortiGate पे राउटिंग टेबल बता रहा है कि दोनों पोर्ट्स अवेलेबल हैं. दोनों का एडी वैल्यू 10 है. ये भी 10 है, ये भी 10 है.
डिफॉल्ट राउट इस पर भी है, डिफॉल्ट राउट इस पे भी है। तो क्लास मुझे कंफर्म करती है कि फ्रॉम वेयर दिस पैकेट वुड गो आउट। पोर्ट 2 इस्तेमाल होगा, पोर्ट 1 इस्तेमाल होगा। कैन यू गाइस सी दिस? पोर्ट 3 से ट्रैफिक आई 10.0.1.20 की, डेस्टिनेशन क्या था 4444, किस पोर्ट से बाहर गई है सर? हाँ यार बता दें। पोर्ट नंबर 2 से। क्यों? नहीं यार, पोर्ट 2 से गई है गुलाम रजा, पोर्ट 2 से गई है ना यार। देखो पोर्ट 3 से आई है, पोर्ट 2 से एग्जिट हुई है ना। वाई फ्रॉम पोर्ट 2? वाई फ्रॉम पोर्ट 2? राउटिंग टेबल तो आपको बता रहा है कि ट्रैफिक जो है वो लोड बैलेंस होनी चाहिए 1 और 2 दोनों के दरमियान। 10 एडी है यार। मेरी रिक्वेस्ट यहां इस सोर्स से आई है दो डिफरेंट डेस्टिनेशंस की तरफ, और दोनों के अंदर इनकमिंग पोर्ट 3 था, आउटगोइंग पोर्ट 2 था। ये भी पोर्ट 3 से इन हुई, पोर्ट 2 से बाहर गई। ये भी पोर्ट 3 से इन हुई और पोर्ट 2 से बाहर गई। इसकी वजह थी वो ECMP सोर्स बेस विच वाज डिफॉल्ट। याद है आपको? बाय डिफॉल्ट हमने क्या कहा था कि जो ECMP है इक्वल कॉस्ट मल्टीपैथिंग होती है फोर्टिनेट के अंदर, वो होती है सोर्स बेस्ड। और सोर्स बेस्ड ECMP क्या थी? व्हाट वाज सोर्स बेस्ड ECMP? सोर्स बेस्ड ECMP थी कि आपके एक सोर्स से जितने भी सेशंस आएंगे irrespective of the destinations they will always follow the same port। तो क्लास मेरे साथ है? वही हो रहा है ना। अब देखो डिफरेंट डेस्टिनेशंस थी मेरी, मैंने जब ट्रैफिक इनिशिएट की है यहां से अपने इंटरनल राउटर से दो डिफरेंट डेस्टिनेशंस की तरफ, तो सोर्स वाज सेम, डेस्टिनेशंस वर डिफरेंट, लेकिन सिंस the equal cost multipathing would be following the source based algorithm, तो एक सोर्स से आने वाली ट्रैफिक हमेशा सेम पोर्ट से एग्जिट करेगी, राइट? और वही हो रहा है। सो फार सो गुड गाइस। ओके, इसको इस बिहेवियर को चेंज किया जा सकता है। वी कैन चेंज दिस बिहेवियर, और उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? आई हैव टू बेसिकली चेंज दिस डिफॉल्ट मोड। मुझे इस डिफॉल्ट मोड को चेंज करना पड़ेगा, और उस मोड को चेंज करने के लिए आपको सेटिंग्स में जाना पड़ता है। कॉन्फ़िग सिस्टम सेटिंग्स एंटर करता हूं, सेट V4 इक्वल कॉस्ट मल्टीपैथिंग मोड क्वेश्चन मार्क करता हूं। सर क्लास देख सकती है कि देयर आर बेसिकली 4 टाइप्स of ECMP mode which are available: source IP based, which is default, or weight based, usage based, or source destination IP based. तो by default since it's source based, right, इसको मैं चेंज कर देता हूं, let me make it source destination IP based। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा? set V4 ECMP mode source destination IP based और enter कर देता हूं, and here it goes। So guys, I have now changed the ECMP mode, default ECMP mode जो Fortinet का उसको मैंने चेंज कर दिया। I made it now source destination IP based। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये है कि आपकी बार एक कॉम्बिनेशन एक पोर्ट को इस्तेमाल करेगा, यानी A और B, इट्स वन कॉम्बिनेशन, सोर्स और डेस्टिनेशन का एक कॉम्बिनेशन है। और अगर सोर्स मेरी सेम भी है, डेस्टिनेशन मेरी डिफरेंट है, तो इट कैन चूज अ डिफरेंट पोर्ट ऑफ एग्जिट। तो क्लास पॉइंट समझ गई है? प्रीवियसली क्या हो रहा था? सिंस इट वाज सोर्स बेस्ड, तो सोर्स बेस्ड की वजह से भाई ए से निकलने वाले सारे फ्लोज जो हैं, भले वो बी की तरफ जाएं या वो सी की तरफ जाएं, ऑल वर फॉलोइंग पोर्ट नंबर 2, वो सारे के सारे पोर्ट 2 से एग्जिट हो रहे थे। So now we have changed the behavior. We have made that ECMP mode as source destination IP base. So अब एक दफा कोशिश दोबारा करते हैं। Let's again let's generate the traffic, लेकिन उससे पहले एक दफा जरा probe enable कर लेते हैं, sniffer enable कर लेते हैं। इसके ऊपर diagnose sniffer packet, TCP port 80 पे sniffer लगाया। Let's get back to our web server again, और
टेलनेट करता हूं पोर्ट 80 के ऊपर, सेशन मेरा ओपन हुआ भाई, सोर्स मेरा ये वाला इंटरफेस था 10.0.120, डेस्टिनेशन वाज 3333 और आप देखो कि लोकल 40 गेट के ऊपर पोर्ट 3 से ट्रैफिक आई है, नाउ इट हैज चोजन पोर्ट नंबर 1, राइट, उसने पोर्ट 1 चूज किया एग्जिट के लिए, राइट। सो लेट्स गेट बैक टू वेब सर्वर अगेन, और अब हम बेसिकली टेलनेट करते हैं 44 के ऊपर। अब सोर्स और आईपी का कॉम्बिनेशन फर्क है, एंटर करते हैं, सेशन मेरा ओपन हुआ, लोकल 40 गेट पे आता हूं और इसने पोर्ट 3 से स्निफर दोबारा एक्टिवेट करता हूं और इस रिक्वेस्ट को भी दोबारा इनिशिएट करता हूं। 44 की रिक्वेस्ट आई, 80 पे पोर्ट 3 चूज हुआ, पोर्ट 3 से आई पोर्ट 1 चूज हुआ, पोर्ट 3 से आई पोर्ट 1 चूज हुआ। हम ये काम कर सकते हैं और वो ये कि लेट्स यूज आवर लोकल विंडोज। लोकल विंडोज में मेरा सोर्स बिल्कुल डिफरेंट हो जाएगा, राइट। और मैं ऐसा करता हूं कि लोकल विंडोज पे जाके let me initiate a HTTP request to 33.3.3.3। गेटवे राउटर पे सिर्फ एक काम कर लेता हूं कि मैं अनेबल कर लेता हूं पासवर्ड, अनेबल पासवर्ड कॉर्पोरेट, एंटर, और वापस आता हूं अपने इस डिवाइस पे। लेट मी इनिशिएट दी रिक्वेस्ट, मुझसे वो पासवर्ड पूछ रहा है, कॉर्पोरेट पासवर्ड दिया, लॉग इन किया, तो मैं राउटर में आ गया। अब एक्सेस द राउटर, इसका HTTP पेज आ गया मेरे सामने। लेट मी गेट बैक टू माय स्निफर और देखते हैं कि स्निफर पे क्या हालात हैं। सर क्लास कंफर्म करती है, कैन यू गाइस सी दिस? पोर्ट 3 से ट्रैफिक आई है 33 की तरफ। सर कौन सा पोर्ट इस्तेमाल किया उसने? आउटगोइंग पोर्ट 3 से आई है, इट इज चोजन पोर्ट 2। क्लास मेरे साथ है। इससे पहले हमने जब वहां से रिक्वेस्ट भेजी थी 10.0.1 से, तो उसने पोर्ट नंबर 2 पे एक कॉम्बिनेशन है, बेसिकली वन कॉम्बिनेशन विल ऑलवेज फॉलो वन सेट ऑफ पोर्ट। आपकी लोड बैलेंसिंग चलेगी इसके ऊपर, राइट। आई होप क्लास इज क्लियर ऑन द कॉन्सेप्ट। क्लास को आइडिया समझ आ गया? ऑल ऑफ यू आर क्लियर? अच्छा, अगर क्लास को आइडिया समझ आ गया तो अब एक काम करते हैं, और वो काम ये है कि लेट्स एनेबल आवर लास्ट रिक्वायरमेंट। और वो रिक्वायरमेंट ये है कि यूजिंग दी पॉलिसी बेस्ड राउटिंग, लेट्स फोर्स ऑल द HTTPS traffic to egress through port number 1 of local 48। भाई मेरी बाकी ट्रैफिक जो है वो इक्वल कॉस्ट मल्टीपैथिंग करे बेस्ड ऑन सोर्स डेस्टिनेशन IP, लेकिन जो HTTPS की ट्रैफिक है मैं चाहता हूं हमेशा पोर्ट नंबर 1 से एग्जिट करे। It should always egress via port number 1, right? So using policy based routing, let me add an exception कि HTTPS की ट्रैफिक should also always egress port 1। बाकी ट्रैफिक it can go either via port 3 to port 1 या port 3 to port 2, जो भी एक लॉजिक बिल्ड होता है उसके मुताबिक वो डिस्ट्रीब्यूट करे ट्रैफिक को, लेकिन HTTPS की ट्रैफिक should always egress through port 1। ये हम काम कर सकते हैं पॉलिसी बेस्ड राउटिंग के थ्रू। कैसे करेंगे? लेट्स गेट बैक टू आवर FortiGate अगेन, और वहां जाके लॉग इन करते हैं, एंड लेट मी जनरेट अ पॉलिसी राउट। पॉलिसी राउटिंग आपके पास अवेलेबल है, अगर आप चाहते हो जी स्टैटिक राउट के बिल्कुल नीचे देखें पॉलिसी राउट्स हैं। लेट मी क्रिएट अ पॉलिसी राउट, और इनकमिंग इंटरफेस मैं कहता हूं जी पोर्ट नंबर 3। आउटगोइंग इंटरफेस सोर्स एड्रेस मैं रख सकता हूं लोकल सबनेट, मैंने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया हुआ लोकल सबनेट का,
या आई कैन क्रिएट IP/mask करके सोर्स एड्रेस मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि it should be 10.0.1.0/24 यहाँ से ट्रैफिक आती और डेस्टिनेशन एड्रेस पे मैं स्पेसिफाई कर लेता हूँ कि एनी डेस्टिनेशन कैन बी एनी और TCP की ट्रैफिक थोड़ा स्पेसिफिक कर लेते हैं TCP की ट्रैफिक सोर्स पोर्ट कैन बी बिटवीन 1265535 रैंडम पोर्ट कोई भी हो और डेस्टिनेशन मेरा 443 होगा 443 इज माय डेस्टिनेशन एंड गेटवे एड्रेस मैं रखूंगा अपना आउटगोइंग इंटरफेस को मुझे बेसिकली एनेबल करना पड़ेगा ये इफ एंड देन वाला मामला है आउटगोइंग इंटरफेस मैं कहूंगा जी पोर्ट नंबर 1 मैंने कहा था पोर्ट 1 हो और डेस्टिनेशन मेरा होगा बेसिकली 10.200.1.254 सॉरी गेटवे ये होगा तो देखो मैंने क्या किया व्हाट आई हैव डन मैंने एक पॉलिसी राउट क्रिएट करने जा रहा हूँ which is a combination of two things if this criteria fulfills then do this अब वो क्राइटेरिया क्या है अगर ट्रैफिक इनकमिंग आए पोर्ट नंबर 3 से सोर्स सबनेट हो 10.0.1.0 का डेस्टिनेशन हो कोई भी नेटवर्क टीसीपी की ट्रैफिक हो इस सोर्स पोर्ट से आए और इस डेस्टिनेशन पोर्ट की तरफ जाना हो तो क्या करो देन व्हाट डू outgoing interface should be selected as port 1 and the gateway IP should be 10.200.1.254 and I will be now enabling this basically मैंने ऐड किया एक्सेप्शन पोर्ट 443 के लिए ओके वंस आई हैव एडेड दिस रिमेंबर मेरे नॉर्मल स्टैटिक राउट्स हैं और वो स्टैटिक राउट्स इक्वल कॉस्ट मल्टीपैथिंग कर रहे हैं सोर्स डेस्टिनेशन आईपी के कॉम्बिनेशन के ऊपर दे आर डूइंग इक्वल कॉस्ट मल्टीपैथिंग ऑन दैट बेसिक कॉम्बिनेशन सर मैं ऐसा करता हूं कि अपने गेटवे राउटर के ऊपर HTTPS एनेबल करता हूं IP HTTPS secure server but now my gateway router will start listening at port 443 as well मैं अपनी वेब सर्वर पे जाता हूं लोकल वेब सर्वर पे जाता हूं और अब की बार मैं टेलनेट करूंगा 44444 को और पोर्ट इस्तेमाल करूंगा 443 का I will be using this port 443 port while using telnet और एक काम मुझे करना पड़ेगा लोकल FortiGate पे भी और वो ये है कि I have to enable a sniffer of port 443 और वो स्निफर एनेबल करने का क्या तरीका है जो मैंने पहले स्निफर किया था इसमें और इसमें चेंज होगी सिर्फ पोर्ट नंबर की तो यहाँ पे आई वुड बी चेंजिंग द पोर्ट नंबर एज 443 मैं कहता हूँ डायग्नोज स्निफर पैकेट TCP 13.2 और पोर्ट 443 लेट मी एनेबल दिस स्निफर now my FortiGate is now sniffing on port 443 वापस आते हैं अपने इंटरनल राउटर पे लेट्स इनिशिएट अ सेशन टेलनेट सेशन इनिशिएट करते हैं एक आईपी के ऊपर आई विल क्लिक एंटर सर सेशन मेरा ओपन हुआ आई विल गेट बैक टू माय लोकल FortiGate सर क्लास मुझे बताती है इनकमिंग पोर्ट 3 था तो आउटगोइंग क्या है सर जी क्लास प्लीज कंफर्म करती है इनकमिंग पोर्ट 3 था तो व्हाट वाज द आउटगोइंग पोर्ट 1 राइट पॉलिसी बेस्ड राउटिंग है राइट इनकमिंग पोर्ट 3 आउटगोइंग पोर्ट 1 ओके लेट मी disconnect from this okay अब अगर मैं टेलनेट करूं 3333 को 443 पे ट्रैफिक सेंड करूं सेशन मेरा ओपन हुआ लोकल FortiGate पे आता हूं सर क्लास मुझे कंफर्म करती है व्हाट्स द पोर्ट नंबर नाउ 33 के लिए व्हाट्स आउटगोइंग पोर्ट इट्स पोर्ट नंबर 1 राइट दिस इज व्हाट इज पॉलिसी बेस्ड राउटिंग दिस इज व्हाट इज पॉलिसी बेस्ड राउटिंग मैं ऐसा कर सकता हूं कि आप क्योंकि हम सुन रहे हैं पोर्ट 443 के ऊपर आप 443 के लिए कोई भी ट्रैफिक सेंड करेंगे ना इट विल ऑलवेज फॉलो पोर्ट नंबर 1 फॉर एग्जांपल एक ये जो आपका ये वाला इंटरफेस है 10.200.2.254 या फॉर दैट मैटर
इसे किया जा सकता है 10 to 2 200 to 54 को करते हैं या इसको करते हैं 11 को कर लेते हैं, लेट्स डू इट टू 11 111 और 443 पे ट्रैफिक भेजता हूँ, सेशन मेरा ओपन हुआ, वापस आता हूँ लोकल 40 गेट पे, हियर इट गोस, इट्स पोर्ट नंबर 1, राइट। सर मैं इस स्निफर को खत्म करता हूँ, लेट मी एनेबल माय पोर्ट 80 स्निफर। मैंने पोर्ट 80 स्निफर अपना एक्टिवेट कर दिया। यहाँ पर वही सोर्स डेस्टिनेशन आईपी बेसिस के ऊपर द ट्रैफिक विल बी शिफ्टिंग, वो एक दफा पोर्ट 1, सेकंड टाइम पोर्ट 2, मतलब एक सोर्स डेस्टिनेशन कॉम्बिनेशन हमेशा एक ही पोर्ट को, एक ही कॉम्बिनेशन को इस्तेमाल करेगा। उसमें आपकी ट्रैफिक पोर्ट 2 पे भी जा सकती है, राइट, पोर्ट 3 से आए पोर्ट 2 पे निकल जाए। सो लेट्स ट्राई एंड इनिशिएट सम रिक्वेस्ट, मे बी 33 के ऊपर मैं भेजता हूँ पोर्ट 80 पे। सेशन मेरा ओपन हुआ, लोकल 40 गेट पे आता हूँ, इसे भी पोर्ट 3 पोर्ट 1 इस्तेमाल किया पोर्ट 80 के लिए, लेकिन इफ आई गेट बैक टू माय वेब सर्वर अगेन और कोई और कॉम्बिनेशन देखता हूँ, मे बी 44 80 ओपन किया, पोर्ट 2 से हम चाह रहे हैं कोई ट्रैफिक गुजरे, तो उसके लिए हम यहाँ से इनिशिएट भी कर सकते हैं ट्रैफिक। अपनी लॉगिन पे जाता हूँ एंड लेट मी इनिशिएट पोर्ट 80 ट्रैफिक और 11111 के लिए ट्रैफिक भेज देते हैं। 11.1.1.1 मुझसे पासवर्ड पूछ रहा है, पंच इन माय पासवर्ड एंड लेट मी गेट बैक टू माय स्निफर। पोर्ट 3 से ट्रैफिक आई है, आगे गई है, अच्छा थोड़ा सा लैग है इसके अंदर। नाउ इट इज 10:01 से ट्रैफिक आई और पोर्ट 3 की ट्रैफिक को दिखा रहा है इनकमिंग, और दूसरा वाला पैकेट यहाँ से आउट 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 पोर्ट 3 पे नहीं होगी ना आगे, इस वजह से कि 3 वे हैंडशेक वहाँ इसलिए कंप्लीट नहीं होगा। यहाँ पर अगर आपके पास HTTP सर्वर हो ना प्रॉपर, तो वो आपको यहाँ पे वो दिखाएगा कि इट विल गो लाइक दिस। आई होप एनीवे, आई होप क्लास इज विद मी ऑन दिस, राइट, व्हाट्स द आइडिया ऑफ इक्वल कॉस्ट मल्टीपैथिंग इन FortiGate? सो फार सो गुड। इसको इन प्रोब्स के साथ आप खुद भी प्रैक्टिस करें, राइट, जस्ट डू द प्रैक्टिस यूजिंग दीज प्रोब्स योरसेल्फ एज वेल। आप दोनों एंड्स पे यू कैन ऑलवेज प्लेस द राउटर्स, so it gives you a lot of flexibility to generate different types of traffic. Okay, now let's we can start with the module of switching. मेरा था इरादा कि हम switching करें, एक तो एक्सरसाइज है, लेकिन स्विचिंग से पहले ये करते हैं कि वी नीड टू बेसिकली अंडरस्टैंड दीज टू थिंग्स, रिडंडेंट इंटरफेसेस और एग्रीगेटेड इंटरफेसेस। मेरे ख्याल में आज शायद हम सिर्फ यही कर सकेंगे, विल नॉट बी एबल टू डू दी स्विचिंग पार्ट, स्विचिंग वाली लैब्स नहीं परफॉर्म कर सकेंगे, कंप्लीट चैप्टर नहीं हम पढ़ पाएंगे, बट एनीवे लेट्स ट्राई एंड फोकस ऑन दिस, लेट्स ट्राई एंड डू दिस दीज टू स्मॉल लिटिल लैब्स। इतना बड़ा काम नहीं है। रिडंडेंट इंटरफेसेस और एग्रीगेटेड इंटरफेस। एग्रीगेट का मतलब होता है कि यू सिंपली बंडल अप द इंटरफेसेस, और उसमें आप यूज करते हो 802.3 AD प्रोटोकॉल in the aggregated interfaces. You use concept of it's basically link aggregation, और इसमें जो IEEE का स्टैंडर्ड आप इस्तेमाल करते हो, इट इज 802.3 AD. Basically it binds to the two interfaces together in form of one combined link. दो बेनिफिट्स आपको मिलते हैं, बैंडविड्थ एक्यूमुलेट हो जाती है, जमा हो जाती है, और यू गेट द रिलायबिलिटी फैक्टर कि अगर आप एक लिंक डाउन होता है तो उसमें ट्रैफिक आपकी बाकी दूसरे लिंक पे शिफ्ट हो जाती है। बंडलिंग करने के लिए आपको फिजिकल इंटरफेस चाहिए, यू नीड अ फिजिकल इंटरफेस। आपका जो SVI इंटरफेस है, VLAN इंटरफेस है, दैट कैन नॉट बी यूज्ड एज अ एग्रीगेटेड इंटरफेस, उसको हम एग्रीगेटेड के तौर पे इस्तेमाल नहीं कर सकते। डिफरेंस रिडंडेंट इंटरफेस और
एग्रीगेटेड इंटरफेस के अंदर ये है कि रिडंडेंट के अंदर भी यू कैन कंबाइन मल्टीपल फिजिकल इंटरफेसेस टू प्रोवाइड लिंक रिडंडेंसी। लेकिन इस केस में याद रखिएगा कि जब रिडंडेंट इंटरफेस होते हैं तो आपकी ट्रैफिक हमेशा सिर्फ एक ही इंटरफेस यूज करती है, दूसरे इंटरफेस पे ट्रैफिक नहीं जाती, राइट। रिडंडेंट में देयर इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ एक्टिव एंड स्टैंड बाय, मतलब देयर इज वन प्राइमरी इंटरफेस और बाकी आपके मल्टीपल स्टैंड बाय इंटरफेसेस होते हैं। Whereas in case of aggregated interfaces based on the load balancing algorithm, आपकी ट्रैफिक मुख्तलिफ लिंक्स के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट होती है। So in aggregated bundle, traffic is distributed. Whereas in case of redundant interfaces, your one link is acts as active, जो भी आप ऐड करते हो पहले डिफाइन कर लेते हो कि दिस विल बी माय प्राइमरी लिंक, एंड द सेकंड वन एक्ट्स एज सेकेंडरी, और बैकअप उस पर ट्रैफिक नहीं जाती। हम इस लैब को कर सकते हैं बाय जस्ट कंबाइनिंग a Fortinet with a switch, और उसको हम मैनेजमेंट इंटरफेस से वी कैन बाइंड दैट। मैंने ऑलरेडी टोपोलॉजी यहाँ पर बनाई हुई है एक डिफरेंट सर्वर में, तो लेट्स क्विकली डू दिस स्मॉल लिटिल एक्सरसाइज। एक ऑर्डिनरी स्विच सिस्को का मैंने लगाया हुआ है फॉर डूइंग द कॉन्फ़िगरेशन रिलेटेड टू द एग्रीगेशन। सो you will get the console of the switch, switch जल्दी आपका लोड हो जाता है। सो there are two interfaces which I have to configure as in bundling. So let's do that. अब normal अपनी जो आपकी configuration होती है standard, we can do that channel group के साथ ना। मेरा interface range ethernet 0/0-1 switch port trunk encapsulation define कर लेते हैं .1q, और switch port mode would be trunk, और चैनल ग्रुप मैं कहता हूँ इट्स LACP बेस्ड। ऑन करते हैं तो बात बन जाएगी, प्रोटोकॉल नाम भी मैं कॉन्फ़िगर कर तो कोई मसला नहीं है। चैनल ग्रुप 1 और मोड एक्टिव कर लेते हैं, एंड हियर इट इज, इट विल ऑटोमेटिकली क्रिएट वन पोर्ट चैनल इंटरफेस। दिस इज व्हाट इज रिक्वायर्ड ऑन द स्विच एंड। अब देखते हैं फोर्टिनेट पे इफ वी कैन गेट दी। फोर्टिनेट की इमेज में प्रॉब्लम है, इतना टाइम नहीं लगता, रिमेंबर दैट। अगर कोई सही तरीके से ना बूट हुआ हो ना तो दीज आर द साइंस। अगर लोड सही ना हो तो ये साइंस होते हैं, अदरवाइज इट गोज वेरी फास्ट। सो मुझे बेसिकली इसको सेव करा के आई हैव टू चेंज द इमेज। मैं कोशिश करता हूँ इमेज को बदलने की। लेट मी स्टॉप दिस। पोर्ट 2 और पोर्ट 3 मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ। Add the node. गलती से FGT था ना, probably that was a reason. That was
a local topology, यहाँ पर भी you can build that quickly. Different server. We recheck this. FGT, I think it's fine now. So let's connect port 2 with Ethernet /1. refresh करते हैं इसको. पोर्ट 1 सर हम यहाँ कर लेते हैं कनेक्ट. स्टार्ट करते हैं and as I mentioned that if the image is correct, तो प्रॉब्लम ये था कि FortiGate मैनेजर का इमेज यहाँ पे था, एडेड था. That was the issue. So I've just changed the image, or let me now access this, or this again an indication का आपको serial number पर represent करता है और थोड़ी देर के अंदर you will get the prompt. Meanwhile, let's build our management network. Here it is. You can see the console is available now. कोई password नहीं है सर, नया password set कर लेते हैं इसका. और system global set host name FGT1 और end कर लिया. और एडिट करना पोर्ट 1 को. पोर्ट 1 पे अनसेट मोड करना पड़ता था कि मैं DHCP को डिसेबल कराऊं और फिर सेट IP कर सकता हूं. I can assign a IP address of any subnet. or set see different protocols like ping, HTTPS. सच अपना enable कराया, exit किया. और let's go to our management PC और 151.7 के सबनेट का मैं कोई IP दे दूंगा इस पे. सेवन वन कर लेते हैं. Okay, this is pinging. Let's access so we already configured the recheck कर लेते हैं. Let's reconnect. डिस्कनेक्ट किया और रिकनेक्ट करते हैं स्विच पे और इसकी कॉन्फ़िगरेशन इस एंड पे देख लेते हैं. शो रनिंग में जो मेरे पोर्ट्स थे, अब देखो कि 0.0.0.1 पे चैनल ग्रुप 1 it's there, it's configured. So I have to do the corresponding configuration of aggregation on my side, right? तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको, नेटवर्क पे अगर आप इंटरफेसेस पे जाओ, go to the interfaces, तो
यहाँ पर क्रिएट न्यू में आपके पास ऑप्शन है, इफ आई क्लिक ऑन क्रिएट न्यू, तो यहाँ पे फॉर द टाइम बीइंग इफ यू सी, तो आपका पास एक ही 40 लिंक इंटरफेस है विच इज डेडिकेटेड टू 40 स्विच विच इज कॉन्फ़िगर्ड एज एग्रीगेटेड इंटरफेस. सो लेट मी क्रिएट अ न्यू इंटरफेस. और यहाँ पर मुझे जो इंटरफेस टाइप है उसे चेंज करना पड़ेगा. आई कैन set the interface type as over here. You can see there is a type option available, aggregate 802.3 AD aggregate. So now I would be adding my interface members. So मैंने कहा था मेरे port 2 और 3, these will be the members of the aggregated interfaces. और इसको मैं कोई सा नाम दे देता हूँ. Let's say I can make it LACP. I can give a name as LACP. और port 1, port 2. यहाँ पे एक चीज इंटरेस्टिंग याद रखिएगा कि एंड बाय द वे आई कैन ऑलवेज enable ping on this. एंड ये FortiGate पे ना इंटरफेसेस जब आप डिफाइन करते हैं तो यू हैव ऑप्शन ऑफ डिफाइनिंग द रोल ऑफ द इंटरफेसेस एज वेल. जैसे आप देखो यहाँ पर 4 रोल्स आपको नजर आ रहे हैं, लैन, वैन, DMZ और अनडिफाइंड. इसकी सिग्निफिकेंस क्या है? व्हाट्स द सिग्निफिकेंस ऑफ दिस? देखो, अगर मैं फॉर एग्जांपल यहाँ पे एग्जांपल के लिए कह रहा हूँ, अगर मैं यहाँ पर वैन का इंटरफेस कॉन्फ़िगर करता हूँ, मैं इसका रोल सेट करता हूँ वैन, और वैन के रोल में बॉटम में देखें यहाँ पे DHCP और उस तरह की ऑप्शन सारी ऑटोमेटिकली उसने खत्म कर दी हैं, हाइड कर दी हैं. मैं लैन पे जाता हूँ तो स्क्रॉल डाउन करता हूँ तो आपको यहाँ पर काफी ऑप्शंस और भी मिलेंगी. यू कैन कॉन्फ़िगर DHCP सर्वर ऑन दिस पोर्ट. आप इस इंटरफेस को बकायदा DHCP सर्वर बना सकते हैं. क्लासेस गेटिंग माय पॉइंट? जब मैंने रोल लैन सेट किया है तो रोल, उस रोल के मुताबिक जो चीजें यहाँ मैं कॉन्फ़िगर कर सकता हूँ, इट्स शोइंग मी दोस थिंग्स. अगर मैं इस इंटरफेस का रोल वैन करता हूँ, अब वाइड एरिया नेटवर्क अगर पे एक इंटरफेस हो तो इट डजंट मेक सेंस कि उसके ऊपर हम DHCP एनेबल कर रहे हो. वी नेवर डू दैट. तो इट्स अ सॉर्ट ऑफ अ प्रोटेक्शन व्हिच इज देयर. अब वैन के केस में यस, रेट लिमिटिंग एक ऑप्शन होती है अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम की. वी कैन ऑलवेज रेट लिमिट आवर बैंडविड्थ. So it's a smart way of putting an additional check which is available in FortiGate. मेरे ख्याल में मैंने काफी फायरवॉल्स पे काम किया है. मुझे ये रोल बेस्ड ना तो हुआवे में नजर आया है, ना ही सिस्को में है, ना ही पैलो अल्टो के अंदर. इट्स अ थिंग व्हिच इज यूनिक टू FortiGate, राइट? सो क्लास इज क्लियर ऑन दिस कॉन्सेप्ट ऑफ रोल, कि अगर आप लैन कर देते हो यहाँ पे रोल, तो वो लैन के मुताबिक, अपने रोल के मुताबिक ही आपको चीजें यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन की प्रपोज करता है, राइट? Anyway, our purpose was to configure aggregated interface. तो मैंने इंटरफेस को नाम दिया, उसकी टाइप सेट की 802.3 AD एग्रीगेट, उसमें दोनों पोर्ट्स ऐड कराए, रोल उसका लैन मुझे प्रपोज करा था ऐसे, क्योंकि आई एम कंफर्टेबल विद दिस. ऐसे मैंने पिंग शिंग उसके ऊपर सेट कर दी, जरूरत उसकी भी नहीं थी. एंड आई कैन क्लिक ओके. Okay, now you can see that the aggregated interface is available to me over here, right? और मैं if I go to my switch और यहाँ जाकर शो ईथर चैनल समरी करता हूँ, एंटर करता हूँ, तो कैन यू गाइस सी दिस पोर्ट चैनल 1 SU. SU का मतलब क्या होता है? S का मतलब होता है कि इट्स बेसिकली लेयर 2 ईथर चैनल. भाई मैंने कोई IP नहीं दिया है इसके ऊपर. और U का मतलब है इट इज इन यूज, और ये LACP प्रोटोकॉल है इस पे, और 2 पोर्ट्स हैं. P का मतलब है कि दे आर पार्ट ऑफ दिस बंडल, bundled in the port channel. Sir, class is with me on this. और इसी तरह से अगर आपने एग्रीगेटेड इंटरफेस कॉन्फ़िगर करना है, तो सॉरी redundant इंटरफेस करना है, तो उसके अंदर भी आपके पास यू हैव ऑप्शन, यू कैन ऑलवेज पुट द 2 इंटरफेसेस इन redundant फैशन, और उनको आप स्विचेस पे यू कैन डू दी कॉन्फ़िगरेशन ऑन द स्विचेस साइड. अब होगा ये कि आपकी बार हमें बेसिकली उसी तरह से वो करना पड़ेगा. जैसे अभी इस केस में अगर मैं एक नया इंटरफेस क्रिएट करूं यहीं पे, तो
टाइप मैं सेट करूंगा रिडंडेंट, और मैं देखता हूँ मेरे पास कौन से इंटरफेसेस अवेलेबल हैं। आई गॉट वन पोर्ट, मैं इसमें एक पोर्ट ऐड कर लेता हूँ। लेट मी जस्ट डिलीट दैट एग्रीगेटेड इंटरफेस, ताकि मेरे पास एक और इंटरफेस आ जाए और मैं उसको रिडंडेंट में ऐड कर सकूँ। सो लेट मी डू दैट, आई कैन गेट बैक टू माय इंटरफेसेस अगेन। और अगर मैंने इसको डिलीट करना, आई कैन सेलेक्ट दिस, रिलीज द इंटरफेसेस, ओके करता हूँ। पोर्ट्स मेरे पास अवेलेबल हैं, आई कैन क्रिएट अ न्यू इंटरफेस। टाइप उसकी मैं सेट कर दूंगा रिडंडेंट, ऐड कर सकता हूँ उसमें इंटरफेसेस जो अवेलेबल हैं, लेट्स से पोर्ट 2 और पोर्ट 3 दोनों को ऐड कर लेता हूँ। नाम इसको दे देता हूँ ABC का, ऐसे ही हाइपोथेटिकल नाम दे दिया, रिडंडेंट इंटरफेस है, लैन है, एंड दैट्स इट। ओके करता हूँ। So here it goes, you can see that there is one interface which is redundant, और उसमें ये दो पोर्ट्स हैं, राइट। और इसको मैं I can configure that on the other side, switch के साथ को अटैच कर सकता हूँ। So this was the idea of redundant interfaces or aggregated interfaces. Now we can put a stop over here today, और आप लोग इसकी प्रैक्टिस प्लीज नेक्स्ट सेशन से पहले करें। रिमेंबर, लेट्स हैव अ क्विक रीकैप ऑफ व्हाट वी हैव डन टुडे। बेसिकली भी हमने राउटिंग को देखा इन पर्सपेक्टिव ऑफ फोर्टिगेट, और पहले हमने डिस्कस किया कि जो डायनामिक राउटिंग प्रोटोकॉल्स हैं, कौन कौन से राउटिंग प्रोटोकॉल सपोर्टेड हैं, और एक हाई लेवल डिफरेंस देख लिया उनके बीच में। उसके बाद फिर ओएसपीएफ राउटिंग को फोकस करके वी डिफाइंड ओएसपीएफ राउटिंग बिटवीन लोकल फोर्टिगेट एंड गेटवे राउटर्स, और फिर हमने लूप बैक इंटरफेसेस ऐड किए, उनको भी एडवर्टाइज करवाया ओएसपीएफ में। उसके बाद वी कॉन्फ़िगर्ड द प्राइमरी इंटरनेट लिंक और बैकअप इंटरनेट लिंक यूजिंग दी स्टैटिक राउट्स। फिर स्टैटिक राउट्स के दरमियान राउट फेल ओवर का मैकेनिज्म बिल्ड किया। ऑन टॉप ऑफ दैट लिंक हेल्थ मॉनिटर्स एनेबल किए। फिर इक्वल कॉस्ट मल्टी पाथिंग कॉन्फ़िगर की लोकल फोर्टिगेट पे टू बैलेंस द ट्रैफिक बिटवीन पोर्ट 1 एंड पोर्ट 2। वी आइडेंटिफाइड कि आपके बाय डिफॉल्ट ईसीएमपी के अंदर चार मेथड्स होते हैं, सोर्स बेस, सोर्स डेस्टिनेशन, स्पिल ओवर, वेटेड। हमने डिफॉल्ट को चेंज किया सोर्स डेस्टिनेशन बेस पे। फिर फाइनली व्हाट वी डू कि वी कॉन्फ़िगर्ड पॉलिसी बेस्ड राउटिंग, और एचटीटीपीएस की ट्रैफिक को एक्सक्लूसिवली हमने कहा कि दैट शुड इग्रेस पोर्ट 1, और after that we configured aggregated interfaces and redundant interfaces. So this is what we did today. इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन में हम स्विचिंग वाला मॉड्यूल कवर करेंगे, स्विचिंग वाला चैप्टर से स्टार्ट करेंगे। एनी क्वेश्चन यार, कोई सवाल? ओके, सी यू नेक्स्ट सैटरडे इंशाल्लाह सेम टाइम। थैंक यू।